Namaskar and pranam to all. On behalf of the Department of Yoga and Naturopathy, Sarla University, Ranchi, I, Nilachal, welcome all the participants, our distinguished speaker in this Yatra. Yatra is the acronym for the Yoga and Ancient Trends and Recent Advancements. It's a webinar series. It's actually a 4 webinar series which will be continuing till the 11th of June. It's one of the event which is preceding to the Yoga Day, International Yoga Day. So before starting before we will be listening to our speakers, we will start with the official prayer. For that, I would like to invite Vishakha, a student of MSc Yogic Science, to start this webinar with the opening prayer. All of you are requested Vishakha, to you need to close unmute your yourself. eyes. Yeah, Am I audible to you, sir? you're audible, Vishakha. Yes, okay, sir. All of you are requested to close your eyes, spine erect. We will chant Gayatri Mantra after that Patanjali Mantra. So let's start. Om Bhur Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात् योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. Thank you, sir. Thank you, Vishakha, for this opening prayer. The countdown to the 8th International Day of Yoga 2022 has begun. We are celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav this whole year with the aim to raise awareness worldwide of many benefits of yoga, not only physical but mental, social, and spiritual also. Now, I would like to invite Dr. Garima Jaiswalji for the theme introduction of the program. Pranam, I'm audible to you, sir. Yes, ma'am. A very good morning to all dignitaries, member of the program. I feel privileged to take this opportunity for theme introduction of this webinar series, Yatra. Instead of saying life is a race, better to say life is a journey. Through follow yogic discipline, this journey will become beautiful and enlightened. As we all know, India celebrating 75th anniversary of freedom, Azadi Ka Amrit Mahotsav. On this occasion, Sarla Birla University celebrating 21st June International Yoga Day and organize a webinar series, Yatra, Yoga and Ancient Trends and Recent Advancements. Permanent freedom for suffering and search for existential truth, our ancient rishis revealed yoga sadhana from deepest aspect of pure consciousness. This yoga sadhana from Veda to Sanhita,
Brahman, Aranyak, Upanishad, Puranas, commentaries, and Guru Shishya Parampara, it comes to us. Various Guru Parampara were developed in India, but ultimate purpose is one, which is self-realization. For better understand this ancient trend and recent advancements of yoga, we have expert speaker in different day. Today with us, Dr. Ghanshyam Singh Thakur sir, 28th May, Shri Subodh Tiwari sir, 28th of May, Dr. Ananda Balyogi sir, last but not least, 11th June, Dr. Chinmay Pandya sir. So once again, welcome to all of you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for giving the theme of this Yatra webinar. Now, I would like to invite Ms. Namrata, ma'am, for the welcome note. A very good morning, all dignitaries, members of the program. I feel proud to state that Department of Yoga and Naturopathy (SBU) organized this webinar on yoga, ancient trends and recent advancements, Yatra, under the gracious blessings and guidance of our Chancellor, Honorable Joyashree Mehto Ma'am, Pro-Chancellor, Honorable V.K. Dalal Sir, our CEO, Honorable Pradeep Kumar Verma Sir. Today, we have with us Honorable Dr. Ghanshyam Singh Thakur Sir, Assistant Professor, Hemwati Nandan Bahuguna University, Garhwal, Srinagar, as our speaker of the day. I would also like to welcome our Honorable Vice Chancellor, Dr. Gopal Pathak Sir, Honorable Registrar, Dr. Vijay Kumar Singh Sir, respected Dean of Nursing and Public Health, Dr. Subhani Bara Ma'am, respected Administrator, Mr. Asutosh Kumar Dwivedi Sir, our learned faculty, Department of Yoga and Naturopathy, Dr. Garima Jaiswal, Mr. Nilachal, Mr. Pankaj Kesri, and Mr. Sahil. I would also like to welcome all the professors, research scholars, students, yoga seekers, and all the yoga aspirants in this webinar, Yatra. I once again warmly welcome all of you to online webinar, Yoga, Ancient Trends and Recent Advancements, Yatra. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for the welcome note. Sarla Bilka welcomes everyone in this webinar series, Yatra. It is requested to all that kindly turn on the camera so we can just have a very interactive session today. And moving further to the this webinar, now I would like to invite respected Administrator, Department of Yoga and Naturopathy, Mr. Ashutosh Dwivedi sir, for his address. Over to you, sir. आज इस आभासी गोष्ठी में सरला बेला विश्वविद्यालय के योगा विभाग की तरफ से सरला बेला विश्वविद्यालय के उपस्थित कुलपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रोफेसर गोपाल पाठक सर, कुल सचिव डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, अपने सरला बेला विश्वविद्यालय के मुख्य कार्मिक शासनिक प्रमुख डॉक्टर प्रदीप वर्मा सर, ने आज हम लोग इस योग के आभासी में स्थित है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप लोगों के सानिध्य में योग कुछ करने का अवसर मिला है, बोलने का अवसर मिला है। जैसा कि हम लोगों को पता ही है, अपने सरला बेला विश्वविद्यालय के ध्येय वाक्य में ही है योग कर्मश कौशलम। अपने यहाँ कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु संगोष्ठ कर्मणः।
कर्म। और योग क्या है? वो हम लोगों को ईश्वर से सानिध्य कराता है, ईश्वर के सामने पे पहुंचाता है। और ऐसा कहा गया है रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो योग उस परम पिता परमात्मा से हम सबका साक्षात्कार कराता है, और योग हम दूसरों एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम है। आज प्रथम दिन है योगा का, जो अपना यात्रा शुरू हो रहा है। ये अनंत काल से यात्रा चल रहा है और हम सारे लोग उस पथ के पथिक हैं। और ये पथ का अंतिम विश्रांति होगा अपने अंतिम श्वास प्रश्वास के द्वारा। तो हम सारे लोग अपने से श्रेष्ठ जो वक्ता हैं उन सबको सुने। और जैसा अभी हम लोगों ने देखा, योगेन चित्ते से न वाचा मलस शरीर चित वैदिकेन, ये क्या है? अपना पतंजलि सूत्र है, उसके द्वारा हम अपने शरीर को योग के द्वारा अंदर के जो अंतर्निहित व्याधियां हैं, अंतर्निहित कलुषता है, उस कलुषता को योग के माध्यम से हम लोग बाहर कर सकते हैं। बहुत पौराणिक परंपरा है, बहुत प्राचीन परंपरा है अपनी, लेकिन विश्व में पुनः एक बार भारतीयता का जो डंका बजा, वो 21 जून 2015 को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उद्घोषणा हुई। और इसका सारा श्रेय जाता है अपने यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। तो उस दिन गौरवान्वित का क्षण आया और ध्यान आया कि भारत विश्व गुरु के प्रथम पायदान पे पुनः प्रतिष्ठित होने के लिए अग्रसर है। तो हम सारे लोग उस राष्ट्र के रहने वाले हैं जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्णचंद्र सरकार और योग के परिपूर्ण ऐसे भगवान शिव के इस धराधाम में हम सारे लोग रहते हैं। आज इस योग की यात्रा में अपने से बहुत श्रेष्ठ वक्ता डॉक्टर घनश्याम सिंह ठाकुर जी हैं, जो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हैं। आप ऐसे स्थान से आते हैं, ऐसा माना जाता है उत्तराखंड देवालय, उत्तराखंड और हिमाचल को मिला के देवालय भी कहा जाता है। तो देवभूमि से कुछ न कुछ हम सबको डॉक्टर घनश्याम जी का उद्गार मिलेगा और अपने से श्रेष्ठ अपने विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और कुलसचिव जी के द्वारा सुनना है। समझ लेते हुए अपनी बात को करता आपको मेरी तरफ से में, और आज एक बार पुनः याद दिलाना कि अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस की मंगल कामना देते हुए अपनी 2 बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। Now moving further. Established in 2018, Sarla Bella University, Ranchi, the university with a difference, has grown in multiple dimensions. This growth and achievement wouldn't have been possible without the guidance of our elders. This yatra wouldn't have been possible without the guidance of our respected registrars, sir. Now, I would like to invite respected registrar, Professor V.K. Singh, sir, for his address note. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने अपने डॉक्टर घनश्याम सिंह ठाकुर जी, चीफ गेस्ट, कुलपति प्रोफेसर गोपाल पाठक जी, डीन डॉक्टर सुभानी वाड़ा, एडमिन एंड कोऑर्डिनेटर आशुतोष द्विवेदी जी, इस डिपार्टमेंट को चलाने वाले नीलांचल जी, गरिमा जायसवाल, नर्मदा चौहान और फैकल्टी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों का, फैकल्टी मेंबर्स, अपने जो स्टूडेंट्स हैं। मैं देख रहा था कि 44 पार्टिसिपेंट हैं, संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। नाम भी आप लोगों ने अच्छा दिया है यात्रा, क्योंकि इसकी जब तैयारी चल रही थी तो मैं भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ रहता हूँ।
तो नाम भी बड़ा अच्छा है, यात्रा योगा एंशिएंट ट्रेंड्स एंड रिसेंट एडवांसमेंट। इस पर हम सभी एक सीरीज कर रहे हैं जो 11 जून तक चलेगा। अभी अपने पूर्व के वक्ता ने कहा कि डॉक्टर घनश्याम सिंह ठाकुर जी हैं, और स्वाभाविक है कि योगा के विषय के ही जानकार हैं, तो उनका भी आज मार्गदर्शन आपको मिलेगा, सब सुनेंगे हम सभी। और आगे भी 11 जून तक जितने भी वक्ता हैं, मैं देख रहा था कि सभी अपने अपने क्षेत्र के ख्याति प्राप्त हैं, और उनके भी गाइडेंस, उनका भी स्पीच और उनका भी लेक्चर सुनने को मिलेगा, हम उससे लाभ ले सकते। मेरा आज के इस अवसर पर इतना ही करना है। हम सभी योग के बारे में जानते हैं, कोई नई बात नहीं है भारतवर्ष के लिए। और अभी पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि पूरी दुनिया में योग को लोगों ने अडॉप्ट किया है। योग केवल पहले हम लोग आमतौर पर सोचते थे कि योग व्यायाम का एक रूप है जिसे शरीर के अंग को खींचना और मोड़ना शामिल है, लेकिन योग सिर्फ व्यायाम से अधिक है। योग मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक पथ के माध्यम से जीवन जीने की कला है। यह शांति प्राप्त करने और आंतरिक स्वयं की चेतना में टैप करने की अनुमति देता है। हम योग के प्रति धैर्य रखना चाहिए। लोग आमतौर पर वजन कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन योग के मुख्य लक्षण कई हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आत्मबोध, सामाजिक स्वास्थ्य, नियमित रूप से योग का अभ्यास करना आदि। जिस विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम चल रहा है उसके लोगों के बारे में अपने आशुतोष द्विवेदी जी ने कहा, योगा ये हमारा सरला वेला विश्वविद्यालय का लोगो ही है और ध्येय वाक्य है। उसके आधार पर सब हम अपनी यात्रा के विश्वविद्यालय के प्रारंभ किए और ध्यान होगा कि पूरे झारखंड में और इस क्षेत्र में ये पहला विश्वविद्यालय है जिसने अपने प्रारंभिक काल में ही योग एंड नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट को कुछ दे पाएंगे और हमारे कुछ सीख कर जाएंगे और समाज को मार्गदर्शन करेंगे। और आज के समय में जो योग पूरे दुनिया को मार्गदर्शन दे रहा है उसमें हम सहभागी बनेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ में अपने ठाकुर साहब को भी कि उन्होंने बहुत समय निकाला अपने इस कार्यक्रम के लिए और इस लेक्चर देने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा नाम से ये वेबिनार जो हम सभी कर रहे हैं इसका लाभ सभी को मिलेगा। अपने स्टूडेंट्स को तो मिलेगा ही, साथ में पार्टिसिपेंट को मिलेगा, डिपार्टमेंट को मिलेगा, जिसके आधार पर हम अपने डिपार्टमेंट को सुदृढ़ कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ कि आगे यह जो 7-8 सीरीज है, सीरीज में जो लेक्चर होने वाले हैं उससे हम सभी को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलाचल जी। धन्यवाद सर। आदरणीय रजिस्ट्रार सर ने बहुत संक्षिप्त रूप से योग के बारे में, योग के गहन विषय के बारे में हमको यहाँ पर निर्देशित किया। और आज के जो हमारे वक्ता है डॉक्टर घनश्याम सिंह ठाकुर सर, उनका भी स्वागत किया। अगली ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं नीलाचल सर से आदरणीय मैं वीसी सर से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय वीसी सर। Thank you for inviting me over here. Very good morning to one and all. Honorable guest of today's program, Dr. Ghanshyam Singh Thakur ji from Hemoti Nandan Boguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand. All the
prominent guests over here, our registrar sir, Neelanchal sir, and Srimati Mrs. Bada, Asutosh ji, all faculty members and dear students, dear participants from various corner of the state, maybe even from the countries, because I am finding a good list of speakers like for 28th, we are going to have Sri Subodh Tiwari ji. Then for 28th, Yogacharya Dr. Anand Balyogi Bhavanani ji, Dr. Chinmaya Pandey ji. So I am sure people from around the country, they would be interested in listening to this kind of speakers. So firstly, I would like to congratulate the organizers for selecting such a relevant topic, yoga, ancient trends and recent advancement. So yoga, as we know, in the past, when we talk about the ancient times, yoga used to be the way of life. Yoga doesn't mean only to have the physical fitness and the pranayam and asana, etc., etc. Because when Patanjali mentioned about the 8 points, so they used to be the way of life. But the most important component used to be how to lead the life. Physically, you may be fit, you are doing pranayam every day, you are doing some asanas also every day. But unless the character building is not there, that is what we are finding and is lacking in the society. So this topic is very relevant in today's challenges the entire society is facing. People are running after money, and materialistic things have attracted the society so much that people have forgotten why ancient trends used to be important. It's not that they were doing yoga, asanas, and other components of yogas, all the 8. I will discuss about those 8 components. But character building used to be one of the important things. You may not be having any physical tension or mental tensions, but if you are involved in corrupt type of practices, this yoga teaches also us. If you go through the Bhagavad Gita, the Karma Yoga, what do they say? They never talked about the materialistic thing. They never talked about that earning the money by wrong practices and all, which is very prevalent in society. So for the recent advancement and recent requirement, rather I should also say that it should be a must for all of us. It is a form of relaxation and exercise, no doubt, that incorporates stretching, meditation, and the knowledge of the body's full potential. As I told you, yoga as a way of life is more true to its ancient trends. It constitutes asanas, regulated breathing, that is pranayam, and awareness of Yoga Sutras, all the principles that govern the mind. So governing the mind is the most important thing, how to keep it in order. Regular practice of yoga enhances awareness of mind and body, which is needed in self-management of diet and exercise plan. According to Patanjali, yoga consists of 8 steps or limbs, which are all equally important and are related as parts of a whole. The purpose of these 8 limbs as per Patanjali, the emphasis will be on health benefits. The 8 steps or limbs of yogas are yama, that is the codes of restraint, self-regulations, niyama, observance, practices, self-training, asana, that is all asana, the meditation posture, pranayam, expansion of breath and pran, regulation, control. Then pratyahara, withdrawal of the senses, bringing inward, dharana, concentration, dharan, and dhyana, that is meditation. Samadhi, deep absorption, meditation in its higher state, the state of perfected concentration, and the samadhi, this stage is really very difficult and everybody cannot achieve it. So it not only gives us the physical fitness, at the same time, it charges our mental stage, which is getting ruined. And at present, in recent trend, every day we are reading in newspaper and the kind of information we are getting, why people are getting so much after the money that they have forgotten everything. And these corrupt practices
are ruining the society. So yoga in the right way, as we used to do, or our forefathers, they used to do it. As I told you about the Bhagavad Gita, here the students, long way to go. Senior teachers are also there, junior teachers are also there. Please go through the Bhagavad Gita and find out what their Krishna has told about the yogas. So this yogas purifies your mind. Once your mind is purified, you will never get involved in wrong kind of practices, or never, you will rather hate all those kind of things. They are categorized as adharma, and wherever you are following the path of adharma, destruction is bound to be there. You have to, this yoga teaches us to follow the path of dharma also. The physical fitness is one component, but your mental fitness, which is more important, and this yoga, by practicing yoga, these all 8 components as suggested by Patanjali, if anybody does it on a regular basis, it makes our mind also healthy. It makes our mind also healthy. So once again, I would like to congratulate the organizers for selecting such a befitting topic in today's scenario, which is a requirement. And I wish all of you a good luck. And we are also willing to listen to other speakers, today's speaker, as well as next week program. And every week there is a very eminent speaker. And I think our students, teachers, and everyone whosoever has been connected to this conference will get benefited from these talks. I wish you all good luck. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your valuable words, valuable guidance. Now moving further. I'd like to invite the renowned personality, the speaker of the day, Dr. Ghanshyam Singh Thakur, sir, Assistant Professor, Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand. Let me just give a brief introduction of him so that we can know him well. He undergone his extensive training and PhD in yogic sciences and holistic health from Government of India's recognized deemed University of Yoga, Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Samstha, S. Vyasa, Bangalore. Dr. Ghanshyam Singh Thakur sir has also worked as a research officer in Scientific Research Department, Jabaladham, Lonavala, Pune. He has designed many courses and completed many immense projects to contribute to society in the field of yoga. He has published several papers in reputed journals and presented his research work in many international conferences. We are here very lucky to have you, sir, and eagerly waiting to hear from you on today's topic, yoga and ancient science of healing. Over to you, sir. Respected Dr. Ghanshyam Singh Thakur, sir. थैंक यू सर। सर्वप्रथम सबको मेरा प्रणाम। सरला बिरला यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर गोपाल पाठक जी, रजिस्ट्रार सर प्रोफेसर वीके सिंह जी सर, डीन नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ डॉक्टर सुभानी जी मैम, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सरला बिरला मिस्टर आशुतोष द्विवेदी सर, डिपार्टमेंट हेड नीलांचल जी एंड गरिमा नमता, सबको मेरा प्रणाम। एंड मैं अपने आप को थोड़ा लकी समझता हूं कि आपने मुझे रिनाउंड पर्सनैलिटी के साथ मुझे मंच शेयर करने का मौका दिया, जिसमें सुबोध जी, आनंद बाल योगी जी, चिन्मयानंद जी के साथ मैं अपने आप को इस मंच पे आ रहा हूं, तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने कुछ मन की बात योग से संबंधित इस मंच से शेयर कर सकूं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिफोर स्टार्ट मैं जस्ट सभी पार्टिसिपेंट से और आपसे जानना चाहता हूं कि सब योग के स्टूडेंट ही हैं या आउटसाइडर भी जो अलग डिसिप्लिन के हैं इसमें? मोस्टली योग के ही स्टूडेंट्स हैं इसमें, बहुत अच्छा। और अलग-अलग इंस्टीट्यूशन से। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। और आपका सर ये जो टॉपिक, जो टाइटल यात्रा, ये अपने आप में एक योग की डेफिनेशन को बयान करता है। योग भी एक यात्रा ही है देखा जाए तो। हमारे पद्मश्री डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र जी बोलते हैं
योग वाकई में यात्रा है मानव से महामानव बनने की यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की यात्रा, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने का रास्ता, अविद्या से विद्या की ओर जाने का रास्ता, और या तो हम बोले प्रसव से प्रति प्रसव की ओर जाने को ही हम योग कहा गया है। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही कैचिंग है। मतलब जब मैंने पढ़ा टॉपिक का नाम तो मैं 2 मिनट तक सोचता ही रहा कि आपकी टीम ने रियली में इस टॉपिक पे लेके, मुझे लगता है 1 या 2 दिन लगा दिया होगा कि क्या टॉपिक रखा जाए जिससे कि आप इन्फ्लुएंस कर सकें 21st इंटरनेशनल योगा डे। तो आप इसके बधाई के पात्र हैं सर। और अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं जो मुझे मिला है, योगा एंड एंशिएंट साइंस एंड हीलिंग। देखिए, हीलिंग मतलब है कोई भी विकार जिसको हम ठीक कर सकें। जरूरी नहीं कोई पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर लिया गया है। जैसे वाइस चांसलर सर ने बोला, नॉट ओनली आसन प्राणायाम, योग इज बियॉन्ड दैट, उससे भी आगे का है। इसलिए योगा इज ए साइंस जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी बता दिया गया है कि आपको व्याधियां जो हो रही हैं या आपके योग जो करना है, किस लिए करना है, क्या हील करना है, नॉट ओनली शारीरिक मानसिक, इट बियॉन्ड दैट, उससे भी आगे का है। तो हम आगे बढ़ते हैं और मेरे स्टूडेंट से निवेदन है कि अपना वीडियो ऑन रखें और अपना ऑडियो जो है ना वो म्यूट रखें, और अगर लेक्चर पसंद नहीं आए तो अपना वीडियो भी आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब आदमी सामने देखता है ना तो बोलने वाले को भी एक पावर मिलती है, यू नो। और अभी अगर सब लोग ब्लैंक हो जाएंगे, मुझे समझ नहीं आएगा मैं किसको बोल रहा हूँ, तो मुझे स्क्रीन दिखेगी और नाम दिखेंगे, है ना। अच्छा है कि आप स्टूडेंट हैं और योग के स्टूडेंट हैं, और मुझे लगता है मैं कुछ ना योग के विषय में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देके जाऊंगा जो आपके इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगा। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से, डेफिनेशन ऑफ योग। आप अगर थोड़ी देर सोचेंगे, अगर डेफिनेशन के बारे में कोई भी डेफिनेशन ले लीजिए आप योग की, चाहे वो भगवत गीता के अनुसार हो, पतंजलि के अनुसार हो, हठ योग के अनुसार हो, कहीं भी कोई भी डेफिनेशन ये नहीं बोलती कि योग जो है ना शारीरिक मानसिक को ठीक करने का उपाय है, नहीं बोलती, कोई भी डेफिनेशन नहीं बोलती। हम अगर भगवत गीता के अनुसार जाएं, समत्व योग थे, समता का भाव रखना योग बताया गया। समता का भाव मतलब कैसी परिस्थिति हो उसमें मन हमारा कैसा होना चाहिए, समभाव, एक जैसा, ज्यादा एक्साइटमेंट में आके बहुत ज्यादा खुशी नहीं, और जब इमोशंस हो जाए तो बहुत ज्यादा कम, समता का भाव। तो यहाँ भी कहीं डिजीज नहीं आई, राइट। योगा कर्मशु कौशल, कर्म में कुशलता लाना ही योग है, इसमें भी कई बात नहीं आई। तो कर्म में कुशलता कैसे आएगी, मन पर नियंत्रण के साथ, एकाग्र के साथ कोई भी काम करेंगे। योग से चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मतलब हमारे मन में जो विकार आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, जो अनवांटेड वृत्तियां आ रही हैं, उनको हटाना ही योग है। मतलब ये कि कोई भी डेफिनेशन उठाइए आप, मन पे जोर दिया गया है। आप गौर करें, मन पे कंट्रोल। और वीसी सर ने एक लाइन में पूरा व्याख्यान दे दिया उन्होंने, मन पे नियंत्रण, मन पे नियंत्रण करना ही योग है। ये जो हीलिंग की बात आई है, ये जो विकार को दूर करने की बात आई है, ये तो हमारे जो मेडिकल साइंस में बोलते हैं ना अपन लोग की साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, ये पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हमारे योग के, जिसके करने से हमारा हेल्थ भी अच्छी होती है, हमारा मन भी अच्छा होता है, हमारी डिजीज भी दूर होती है। ये बस साइड इफेक्ट्स है, पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स है। लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, मन पे नियंत्रण। ठीक है, अब मैं इससे और आगे चलता हूं, क्योंकि मुझे टॉपिक मिला है एंशिएंट साइंस। अब मैं साइंस को जोड़ूंगा हीलिंग के साथ वन बाय वन तरीके से। देखिए, योग में ना सबसे पहले हमें शुद्धि की बात की गई है। शुद्धि नॉट ओनली घट शुद्धि। घट शुद्धि क्या है, घट शुद्धि मतलब हम जिससे बोलते हैं षटकर्म अपने, ठीक है। पहले इंटरनल शुद्धि करनी है, तो घट शुद्धि बोला गया है। उसके बाद आपको कर्म शुद्धि करनी है। कर्म शुद्धि में क्या आता है, यम और नियम, फर्स्ट 2 लिम्स, यम और नियम, दैट इज कर्म शुद्धि। उसके बाद आया स्नायु शुद्धि। स्नायु शुद्धि मतलब आसना, आसन करने से स्नायु को शुद्ध करना है। उसके बाद प्राण शुद्धि,
प्राण किसके माध्यम से? प्राणायाम के माध्यम से प्राण को शुद्ध करना है। फिर प्रत्याहार, मन शुद्धि, मन को शुद्ध करना है। उसके बाद इंद्रिया को शुद्धि, धारणा, ध्यान, समाधि। अब देखिए इन को शुद्ध करना है, तो इनको हम शुद्ध कैसे करेंगे, क्या इसका साइंस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए हम सब लोग योग में जब आए हैं या कोई योग सीखता है या योगा थेरेपी लेता है, उसको एक ही कॉन्सेप्ट होता है, क्या? योग जो है ना वो व्याधियों को दूर करता है, योग जो है डिजीज को दूर करता है। लेकिन हमने अभी तक देखा होगा या आप लोगों ने जिसको योगा सिखाया होगा, आपने कई लोगों से सुना होगा कि सर या मैम मैं इतने सालों से योगा कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन उतना फायदा मुझे नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? जब हम आसन प्राणायाम कर रहे हैं तो क्या कारण हो रहा है? हम उस चीज को ठीक नहीं कर पा रहे हैं या उससे हम मैक्सिमम लाभ नहीं ले पा रहे। क्या कारण? उसका सिंपल सा कारण है, हम आसन प्राणायाम तो कर रहे हैं लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमें उसके पीछे का साइंस, एशियन साइंस नहीं पता, उसका आधार नहीं पता, उसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते। और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, आप कितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, मैक्सिमम बेनिफिट आप नहीं ले सकते। डॉक्टर भी इलाज तब कर पाता है सही जब वो आपको डायग्नोज सही कर लेता है। तो आसन प्राणायाम भी से फायदा तभी मिलेगा आपको जब उसकी आप कॉन्सेप्ट को समझें। अब चूंकि योगा जो है ना वो, देखिए पहले मैं क्लियर करता हूँ, योगा साइकोसोमेटिक इलनेस को दूर करता है। हमारे आप इसे पूछेंगे ना, योगा हाँ सब बीमारियों को ठीक कर देता है ना, ओनली साइकोसोमेटिक इलनेस, जो मनोकायिक व्याधियां हैं, जो मन से पैदा हुई है व्याधि। देखिए आगे योग की डेफिनेशन यहाँ पे, वो व्याधि मन से पैदा हुई है, मतलब हमें मन पे काम करना है तो व्याधियां अपने आप सही हो जाएंगी। हमारा मॉडर्न साइंस बहुत बड़ा सिस्टोमेटिक है, बोलता है हमारा जो शरीर है वो सेल से मिलकर बना है, कई सेल मिलकर बनाते हैं क्या? टिश्यू, कई टिश्यू मिलके ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनते हैं फिजिकल बॉडी। बस यही तक सीमित है। लेकिन हमारा योगा एशियन साइंस क्या बोलता है? नो, 33 उपनिषद में पंचकोश का कॉन्सेप्ट मिलता है। वो ये बोलता है कि हमारी बॉडी मेड अप ऑफ 5 कोशास, 5 कोशों से मिलकर बनी है। दैट इज अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश, प्राणिक बॉडी, मनोमय कोश, मेंटल बॉडी, विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअल बॉडी, आनंदमय कोश, दैट इज हैप्पीनेस, ब्लिसफुल बॉडी। आपने पढ़ा होगा, टीचर ने पढ़ाया भी होगा पंचकोश आपको। क्या आपने कभी फील किया है, क्या आपने इसको कभी देखा है कि यार ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, या सिर्फ मान लिया आप लोगों ने? आप चूंकि योग के विद्यार्थी हैं इसलिए मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूं। हम लोगों ने सिर्फ मान लिया कि हाँ ये बॉडी यहाँ है, फील नहीं किया इसको। और बड़ा सिंपल है फील करना, बहुत सिंपल है। फिजिकल बॉडी को हम फील करते हैं, दिखाई देती है। अन्नमय कोश हमें दिखाई देता है इसलिए हम मानते हैं कि हाँ फिजिकल बॉडी है, राइट? व्हाट एवर प्राणमय कोश, प्राणा देखा है क्या आपने? नहीं देखा तो क्यों बिलीव कर रहे हैं आप कि प्राण है? क्योंकि हम जिंदा हैं। देखिए तो क्या डिफरेंस है एक डेड बॉडी, एक लाइव बॉडी में? क्या डिफरेंस है? मेरे में प्राण है क्योंकि मैं सांस ले रहा हूं। प्राणा मेन सोर्स इज ब्रीथ, आई कैन ब्रीथ। तो जब ब्रीथ ले सकता हूं तो मैं प्राणी, मतलब मैं आ गया फिजिकल बॉडी में। डेड बॉडी कांट टेक ब्रीथ, ब्रीथ नहीं ले सकती। इट मींस प्राणा एग्जिस्ट, प्राणा एग्जिस्ट करता है। अगर प्राणा आ जाएगा तो सांस लेने लगेगा, राइट? अगर कोई पेशेंट आपका कोमा में है, फिजिकल बॉडी भी है, प्राण भी है, देन व्हाट इज मिसिंग? क्या मिसिंग है? वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है आपसे, माइंड। उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा है उसका। दैट इज माइंड बॉडी आल्सो एग्जिस्ट। ठीक सर, आपकी बात मान ली। जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं, जो मेंटल डिस्टर्ब वाले पेशेंट होते हैं, जहां बॉडी भी है, प्राण भी है, माइंड भी काम कर रहा है, देन व्हाट इज मिसिंग? इंटेलेक्चुअल।
They don't know mind body connection. They don't know how to deal, how to do that work. So intellectual comes here, right? And what about blissful body? इसको मैं अपने लेक्चर के आखिर में जोड़ूंगा। पहले आप एक 4 बॉडी समझ लेंगे तो फिर आप ब्लिसफुल बॉडी भी समझ जाए। तो ये बॉडी एग्जिस्ट करती है। अब क्वेश्चन उठता है, सर आपने बताया मनोकायिक व्याधियां योगा ठीक करता है, तो कैसे करता है? चलिए मैं डायरेक्ट कम टू द पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक एनर्जी मॉडल समझाता हूं। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? आप जानते हैं साइंस में एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी, E इज इक्वल टू mc²। कोई भी हो, चाहे ये पेन है, चाहे ये मोबाइल है, व्हाटएवर, चाहे ग्लास है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ E इज इक्वल टू mc², राइट? अगर आपको ये मोबाइल उठाना है, इसमें भी कुछ एनर्जी है, इस मोबाइल में एनर्जी है कुछ, आप इसको उठा पा रहे हैं, इट मींस आपने अपने अंदर इससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की है, देन ओनली यू कैन लिफ्ट। अगर इससे कम एनर्जी प्रोड्यूस की होती, आप उठा नहीं सकते थे मोबाइल। साइंस कहता है इसके बराबर एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना आपको। जब अगर इससे कम एनर्जी होगी तो आप मोबाइल को नहीं उठा पाएंगे। तो आपने इससे ज्यादा एनर्जी अपने प्रोड्यूस करी, तभी आप मोबाइल को उठा पाए। और कितनी, वी डोंट नो, हम जानते ही नहीं है ना। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है वाला एग्जांपल। सपोज करिए इस मोबाइल में 200 किलो कैलोरी की एनर्जी है, या 100 मान लेते हैं, 100 किलो कैलोरी की एनर्जी इसमें, फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। अगर मैंने उठाया है तो मैंने 100 से ज्यादा प्रोड्यूस की होगी अपने अंदर एनर्जी। सपोज कर लेते हैं अपन 200 किलो कैलोरी मैंने एनर्जी प्रोड्यूस करी अपने, तो मैंने 100 उठा ली। क्योंकि ये 100 किलो कैलोरी का था और 200 में से 100 गए तो 100 तो मेरे यूज हो गए एनर्जी, लेकिन रिमेनिंग 100 एनर्जी जो बची है वो कहां गई? कभी सोचते ही नहीं है, वो तो अंदर ही रह गई, दैट आवर इनसाइड, वो बाहर निकली नहीं। धीरे धीरे ऐसे डे टू डे लाइफ में हर एक्टिविटी के साथ हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी अंदर रहती है, लेकिन हम कभी कभार टायर्ड होते हैं, कभी कभार नहीं होते हैं। क्या रीजन है उसके पीछे? क्योंकि व्हेन वी एक्सहेल, जब हम सांस छोड़ते हैं तब हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर को जाती है। समझ रहे हैं आप? जब हम सांस छोड़ते हैं, लेते नहीं है, जब हम छोड़ते हैं तब एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर को जाती है। क्योंकि हमारे, इसको जो बोला गया है, हमारी जो एनर्जी है वो मूलाधार चक्र में है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब वहां से रेज अप, ऊपर को उठती है, और एक्स्ट्रा एनर्जी जो ब्रेन एक्टिवेट हो रही थी वो बाहर निकलती है। ठीक है ना? दैट्स व्हाई आपने देखा होगा जो दौड़ते हैं, दौड़ के आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? झुक के सिर्फ सांस छोड़ते हैं, सिर्फ छोड़ते हैं, एक्सहेल। व्हाई? एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकलती है, दे विल रिलैक्स। रामदेव जी ने 15-20 साल पहले क्या सिखाया था, जो घर घर पहुंच गया? कपालभाति। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? जस्ट एक्सहेल, डोंट इनहेल, और व्हेन यू एक्सहेल यू फील रिलैक्स। लोग आप रिलैक्स होने लगे, स्ट्रेस फ्री होने लगे। तो जो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट समझाया है, ये मैं अब आपको समझाने वाला हूं कैसे योग में लागू। तो डे टू डे लाइफ में तनाव, स्ट्रेस बहुत भर जाता है, इसको भी एक अपन ना एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं और पूरा कमरा एयर टाइट है, पूरा बंद है, कहीं से हवा नहीं आ रही, पूरा बंद है, लेकिन नीचे से एक लेजम है जिसमें पानी आ रहा है, हल्का हल्का पानी निकल रहा है, उस कमरे में आ रहा है। अब ये सोच लीजिए वो पानी को आप अपने विचार, अपने तनाव ले सकते हैं। ठीक है, कभी तनाव बढ़ जाता है तो पानी का फ्लो तेज हो गया, समझिए, कम है तो धीरे धीरे पानी आ रहा है, समझिए। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पूरा कमरा किससे भर जाएगा? पानी से भर जाएगा, पूरा कमरा पानी से भर जाएगा, लेकिन पानी को निकलने का रास्ता तो है ही नहीं, और पानी कंटिन्यूस आ रहा है, फिर भी आ रहा है, फिर भी आ रहा है, तो पानी क्या करेगा कमरे में? ऐसे ही तनाव और स्ट्रेस ये मनोमय कोश में आता है, और जब मनोमय कोश में तनाव आके पूरा भर जाता है, फुल डिस्टर्ब हो जाता है आपका मनोमय कोशा, सिमिलरली तो ये पानी जैसे भर गया कमरे में, तो पानी क्या करेगा? अब कोई बता सकता है पानी क्या करेगा? अब
पानी अब दबाव बनाएगा। किस पे दबाव बनाएगा? दीवारों पे, कांच पे दबाव बनाएगा। सिमिलरली जब मनोमय कोश फुल ऑफ स्ट्रेस होता है तो वो दबाव बनाता है और पानी दीवार को तोड़ के दूसरे कमरे में जाएगा। सिमिलरली मनोमय कोशा से वो तनाव निकल के प्राणमय कोशा में जाएगा। प्राणा, यहाँ आ गया एनर्जी। जो भी एनर्जी हमें आराम से रिदमिक वे में, बैलेंस वे में बह रही थी हमारे शरीर में, लेकिन ड्यू टू दिस स्ट्रेस उसका फ्लो हो जाता है फास्ट, हो जाता है इम्बैलेंस। जो बैलेंस बना चाहिए था वो जाता है इम्बैलेंस। अब दोनों कमरे में पानी भर गया, अब दोनों कोश खराब हो गए आपके, मनोमय कोश ड्यू टू स्ट्रेस और प्राणमय कोश इम्बैलेंस ऑफ प्राण। अब वो तीसरे कोश में जाएगा, तीसरे कमरे में जाएगा, दैट इज अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। इसमें क्या होता है, हमारी हेरिडिटी के कारण, वंशानुगत के कारण और जो आज की जो डे टू डे लाइफ स्टाइल है उसके कारण हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन, याद करिए, बताइए, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम बताया था मैंने, तो कोई भी ऑर्गन वीक हो सकता है, कमजोर हो सकता है ना। तो जब प्राण का फ्लो इम्बैलेंस हो जाता है तो जो भी ऑर्गन आपका कमजोर होगा, प्राण वहां स्टक होगा और प्राण वहां स्टक होके वो बीमारी ऊपर को आ जाती है। अगर मेरा लंग्स कमजोर है तो प्राण स्टक हो जाएगा, मुझे अस्थमा का अटैक, मेरी पैनक्रियास कमजोर है, इंसुलिन नहीं बना पा रही है, वहां प्राण स्टक होगा, फिर डायबिटीज। तो रूट कॉज कहाँ है? मन में। योग की डेफिनेशन याद करिए, मन में, माइंड में लेवल पे। अगर वही हमने पानी को रोक दिया होता, वही हमने स्ट्रेस तनाव को रोक लिया होता तो तुमने पानी भरता ही नहीं। इसलिए हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में बोला गया है योग वशिष्ठ में, आदि टू व्याधि। आदि क्या है? मन। वे व्याधि जो आई है मन से आई है। कैसे आई है? इस तरह से आई है। तो मन से आदि पैदा होती हैं बीमारियां और जो हमारे शरीर में आती हैं। इसलिए इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी। ये मैंने एशियन टेक्स्ट में बोला गया है, पंचकोश तैतृक में मिलता है, आदि व्याधि का जिक्र योग वशिष्ठ में मिलता है, पूरा मिलता है। मैंने इन दोनों को मिला दिया समझाने के लिए, आदि व्याधि को पंचकोश से जोड़ दिया है बस, ताकि आप लोग समझ सकें एज ए योगा स्टूडेंट, है ना। तो हमें हील क्या करना है? माइंड लेवल। लेकिन हमारा बताया कोश 5 कोशों से मिलकर बना हुआ है, तो हर एक कोश के लिए ट्रीटमेंट है। अब मैं जो बताया था मैंने कि वी शुड नो द कॉन्सेप्ट। आसन प्राणायाम करते हैं मगर कैसे करना है ये हमें सीखना पड़ेगा। जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक मैक्सिमम बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। तो अन्न में कोश को ठीक करना है सबसे पहले, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करेंगे आप? आसन है, डाइट है, स्पोर्ट्स है, ये सब अन्न में कोश को ठीक कर। हम क्योंकि योग के स्टूडेंट हैं तो आसन की बात करते हैं। चलिए अपन लोग आसन, स्थिर सुखम आसन हम सब जानते हैं, ठीक है। डेफिनेशन सब जानते हैं, इसका मीनिंग अभी तक कई लोग नहीं समझ पाए। हम लोग से बोलते हैं सुखपूर्वक स्थिरता के साथ बैठना ही आसन है, ठीक है, कई हद तक सही है। लेकिन इसमें 3 चीजें लागू हुई हैं आसन में। कौन कौन सी? स्टेबल, स्टडी एंड ब्लिसफुल कंडीशन। ये 3 चीज जिस अवस्था में है वो आसन है। जिस अवस्था, जो पोस्चर में भी ये 3 चीजें लागू होती हैं वो आसन है। पतंजलि ने किसी आसन का नाम नहीं दिया, अर्धकटी चक्रासन, पादासन ना, उन्होंने बताया आसन क्या होता है, आसन किसे कहते हैं। अभी कई विद्यार्थी अपने अलग अलग पोस्चर में बैठे हैं, दैट कैन बी ए आसना, वो भी आसन हो सकता है, बशर्ते उसमें 3 कंडीशन शामिल हो जाए, स्टेबल, स्टडी एंड। अब आप स्टेबल स्टडी का मतलब आप समझे। स्टेबल स्टडी, क्योंकि आप साका माइक म्यूट है इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है अपना, नहीं तो मैं आपसे पूछता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड स्टडी। फॉर एन एग्जाम्पल बोलते हैं वृक्ष आसन लेते हैं, वृक्ष आसन से आप समझ जाएंगे क्या डिफरेंस। वृक्ष आसन में एक पैर पे एक जगह खड़े रहते हैं और बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जब हम खड़े हैं एक जगह, दैट इज स्टेबल। मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूं ताकि आप थोड़ा समझें उस चीज। देखिए मैं
ऐसे खड़ा हूं और मैं अगर ऐसे हिल रहा हूं, दैट इज स्टेबल, एक जगह हूं इसलिए स्टेबल है ये, ठीक है। लेकिन अब मुझे हिलना नहीं है, अब मैं स्टेबल के साथ हिलूंगा भी नहीं, दैट इज स्टडी, स्टेबल एंड स्टडी। एंड इसके साथ ब्लिसफुल कंडीशन, और ऐसी अवस्था के साथ भी आपको ब्लिस में रहना है, एफर्टलेसली, ब्लिस मतलब एफर्टलेस, अवेयरनेस के साथ। तो हर एक आसन में हम आसन तो करते हैं, लेकिन हम कितने स्टेबल हैं, स्टेबल भी होते हैं हम, लेकिन हमारा फर्मनेस नहीं होती, हम स्टडी नहीं रहते, इसलिए हमें इसके लाभ नहीं मिल पाते मैक्सिमम। तो स्टेबल भी हो जाए, स्टडी भी हो जाए, और लेकिन तनाव में है, तनाव ले रहे हैं, रुकने का कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं ना, एफर्टलेसली। देखिए बच्चों, आसन जो है में 3 तरह के लोग होते हैं। एक मान लीजिए अपन पादस आसन लेते हैं, एक स्टूडेंट बड़ा अच्छा आसन कर रहा है, उसका नी बेंड नहीं होता, हाथ पूरे जमीन पे जाते हैं, चेस्ट थाइस पे लगते हैं, माथा घुटनों पे लग रहा है, परफेक्ट आसन, ठीक है। एक बच्चा ऐसा है जो एफर्ट पूरा लगा रहा है, मतलब जहां तक वो जा सकता है वहां तक जा रहा है, लेकिन उसका हाथ जमीन पे नहीं जा रहा, पेट भी थाइस पे नहीं लग रहा, घुटना बेंड नहीं कर रहा है, वो माथा भी टच नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जो लिमिट थी उसे पूरी लिमिट तक गया। ये दूसरा तरह का स्टूडेंट होता है। तीसरा तरह का स्टूडेंट होता है, वो जा सकता था, जमीन टच कर सकता था अपने हाथों से, लेकिन सोचता है काय को कष्ट देना है शरीर को, वो नहीं जाता, वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, काय को कष्ट है ना। ये तो अब आप सोचिए सबसे ज्यादा फायदा कौन से स्टूडेंट को होगा। देखिए आप ऐसे मतलब पिक्चर में 1, 2 और 3 किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा बताइए, 3 को, 2 को, तीसरे को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, एक ने दूसरे को बोला, एक ने दूसरे को, 2 ठीक है, वेरी गुड। देखिए 2 को फायदा सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि वो जहां तक जा सकता था एफर्टलेसली वो वहां तक गया पूरे प्रयत्न के साथ। लेकिन पहले को क्यों नहीं मिलेगा भाई, तो परफेक्ट लगा रहा है, पहला आंसर क्यों नहीं आया आपके मन में? आपने सभी सोचा कि पहले तो सही लगा रहा है, पर उसको क्यों नहीं मिलेगा? वो तो थाइस पे पूरा, हाँ मुस्कान कुछ बोल रही है, आप अनम्यूट कर सकती है मुस्कान। क्योंकि सर उससे इजीली हो जा रहा है। इजीली तो हो जाएगा, अच्छी बात है ना, गलत क्या है? देखिए गलत ये है, वो आसन मैंने पहले बोला था परफेक्ट पोस्चर तो बना रहा है, पोस्चर उसका परफेक्ट, लेकिन उसके अंदर की ऑर्गन ट्विस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको वहां तक जाना है जब उसके अंदर की ऑर्गन हील हो। भाई मुझे अगर इसमें खिंचाव देना है, तो अगर मैं यहां तक चला ही जाता हूं तो खिंचाव मेरा कितना बढ़ जाएगा, कुछ दिनों बाद और बढ़ेगा। इसलिए एडवांस आसना का जन्म हुआ। एडवांस आसना कैसे बने? फिर सोचा है भाई मैं जहां तक जा सकता था वहां तक चला ही गया, लेकिन मुझे फायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि अंदर के ऑर्गन को हील होना है, ट्विस्ट होना है, वो उसको मिल रहा है जहां तक जा। इसलिए कहते हैं आसना में डोंट क्रॉस योर लिमिट बट गो टिल लिमिट। लिमिट तक जाना है, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, लेकिन लिमिट तक तो जाओ, हम जाते ही नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण मन भी है। मन कैसे है? अगर देखिए आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कोई बीमारी हुई आपको, आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, राइट? डॉक्टर दवाई लिख के देगा आपको कि ये दवाई बिफोर ब्रेकफास्ट लेनी है आपको, ये दवाई बिफोर लंच, ये सोने से पहले। ठीक, आप घर पे आके क्या करेंगे? सब फॉलो करेंगे बिल्कुल एज इट इज, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले और सोने से पहले दवाई लेंगे टाइम टू टाइम। फिर आप डॉक्टर ने बोला योगा भी सीख लो, आप योगा थेरेपिस्ट के पास गए, योगा थेरेपिस्ट ने बोला आपको सुबह 6 बजे उठ के ये प्राणायाम, ये आसन करने हैं, और शाम को भी ये प्राणायाम, ये आसन करने हैं। आपका मन बोलेगा आज तो 20 तारीख है, 1 तारीख से शुरू करते हैं। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आज तो बुधवार है, मंडे से शुरू करेंगे। दवाइयों के साथ ऐसा क्यों नहीं बोला आपने?
कि मंडे से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको दवाई पर फेथ है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो दवाई ही मुझे ठीक करेगी, आसन प्राणायाम नहीं करेंगे। वो विश्वास, वो फेथ जब तक नहीं आएगा, आसन करते समय विद कॉन्सेप्ट ऑफ आसना आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो वो हमें करना चाहिए, उसी फेथ के साथ हमें आसन करना चाहिए। ये है आसन। ठीक है। अब कई क्वेश्चन उठेंगे कि सर मुझे डायबिटीज है तो कौन सा आसन करूं, मुझे बैक पेन है तो कौन सा आसन करूं, मुझे अस्थमा है तो मैं कौन सा आसन करूं। बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं इसमें। तो इसका बड़ा सरल एंड सिंपल आंसर है। सपोज करो आप सब योग के विद्यार्थी हैं, थेरेपिस्ट बन गए, आपके बाद डिजीज के लोग भी आएंगे और ऐसे लोग भी आएंगे जिसको कोई डिजीज ना हो। जरूरी थोड़ी है कोई डिजीज हो सकता कोई प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ के लिए है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो आपके हर बार अपने मैडम को फोन करेंगे, सर ये स्टूडेंट आए हैं, इनको मैं कौन से आसन दूं, इनको मैं कौन से आसन दूं, हर बार नहीं। आप देखिए, आपकी उंगली है ना, इसको रीढ़ की हड्डी समझिए। मान लीजिए कोई पेशेंट आया जो प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ है, कोई बीमारी नहीं है, उसको आपको बनाना पैकेज देना है। तो 2 आसन आगे झुकने के, 2 आसन पीछे झुकने के, 2 आसन राइट, 2 आसन लेफ्ट, 2 आसन राइट ट्विस्ट, 2 आसन लेफ्ट ट्विस्ट। बस रीढ़ की हड्डी से ही सारी नर्व्स गई हैं, तो ये प्रमोशन पॉजिटिव हेल्थ हो गया। अब किसी को डायबिटीज है तो लेफ्ट ट्विस्ट पे ज्यादा आसन करवाने हैं। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, बैक बेंडिंग एक्सपेंशन मिलेगा, बैक बेंडिंग के ज्यादा आसन उसमें चाहिए, है ना। तो ये चीजें ध्यान, ये सारे आसन पता है आपको, तो बस रीढ़ की हड्डी को देखते हुए काम करिए, आपको आसन। अब हम आगे चलते हैं। तो आसन क्लियर हो गए कैसे करना है। अच्छा, इसमें एक बात और है, स्थिर सुगम आसन जो मैं बताया, आप बोल सकते हो सर इसमें तो बहुत समय लगेगा, कैसे करेंगे। तो पतंजलि ने बोला भी है, प्रयत्न शैथिल्य अनसमापत्तिभ्याम, प्रयत्न तो करना पड़ेगा। कैसा प्रयत्न? शिथिलता पूर्वक, आराम से, और कब तक? अनंत का, लंबे समय तक। आप बोल सकते का उद्देश्य क्या है, क्यों करना है, कौन लंबे समय तक इंतजार करना है। ततो द्वंद्वो निविघातः, तीसरा ही सूत्र है, इट्स रिमूव अनडुअलिटी ऑफ माइंड। देखो माइंड आ गया ना, माइंड, अनडुअलिटी ऑफ माइंड, माइंड की द्वंद्वता को हटाता है, करना है कि नहीं करना है, जाना है कि नहीं, अलार्म बज गया उठूं कि नहीं उठूं, है, माइंड की द्वंद्वता को दूर करता है आसन। इसलिए आसन, इसलिए इसमें आया है अष्टांग योग में आसन है। अष्टांग योग में आसन सिर्फ शारीरिक उसके लिए नहीं आया, मन पे भी कंट्रोल, इसलिए आया। अब दूसरा कोश कौन सा है? प्राणमय कोश। प्राण मतलब एनर्जी, तो मैंने समझा था आपको भी एनर्जी मॉडल। एनर्जी क्या है? हमारे मूलाधार चक्र में एनर्जी स्टोर है। व्हेन वी एक्सहेल, एनर्जी रेज अप। हम प्राणायाम कर रहे हैं, कई तरीके से करते हैं। प्राणायाम की सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पता है आपको? हमेशा याद रखना, प्राणायाम करते समय योर एक्सहेलेशन शुड बी लॉन्गर देन योर इनहेलेशन। आपका सांस छोड़ने का समय सांस लेने के समय से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? बताया था ना मैंने अभी, एनर्जी मॉडल, एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल, देन यू फील रिलैक्स। तो सांसों का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप बोल सकते हो सर एक्सेल से कैसे क्या? देखिए आपने ना स्मोकर्स देखे हैं, स्मोकर्स जो स्मोक करते हैं, देखे होंगे, डेफिनेटली देखे होंगे, आजकल हर जगह स्मोकर दिखे जाते हैं। उनको भी गौर से देखा है आपने? उनका इनहेल कम होता है, एक्सेल ज्यादा होता है। देखिए गौर करिए, कॉन्सेप्ट समझिए। व्हेन दे एक्सेल दे फील रिलैक्स। उन्हें लगता है या स्मोक करने से ना मेरा स्ट्रेस दूर हो, पर वो ये नहीं जानते कि कॉन्सेप्ट क्या है भाई, क्यों तेरा स्ट्रेस कम हो रहा है? क्योंकि तू एक्सेल ज्यादा कर रहा है। तो एक्सेल कम कर, खांसने लगेगा, वो धुआं अंदर है, एक्सेल कर नहीं पा रहा, क्या करेगा बता? खांसेगा, है ना। तो एक्सेल मोर करना है, जो हम नहीं करते। हमारे उसमें लिखा गया है 1:2 रेशियो,
प्राणायाम के विषय में बोला गया। अगर 10 सेकंड इनहेलेशन है तो एक्सहेलेशन 20 सेकंड का होना चाहिए। अगर उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मोर देन तो करें, ज्यादा तो करें। और प्राणायाम का देखिए, प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? कुंभका की प्राप्ति, केवल कुंभका। कुंभका क्या है? या मैं मजा तभी आएगा जिसको पता है ना। थोड़ा अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताइए, समय बहुत है अपने पास। अनम्यूट करिए अपने आप को, एक दो लोगों को। कुंभक क्या है? आप कुंभका से क्या समझते हैं? राकेश है, अभिषेक है, रहना है, जागृति है, कई लोग हैं, शाखा है, जो भी बोलना चाहे। कुंभका क्या है आपकी नजर में? सर ब्रेथ को होल्ड करना, सांसों को रोकना कुंभका। इसके अलावा किसी और का विचार है तो अनम्यूट करिए। इन्होंने बोला है सांसों को रोकना कुंभका है। एक बात बताओ वैशाखा, सांसों को रोक ही लेंगे तो जी पाएंगे? सांसों को रोकना कुंभका कैसे हो जाएगा भाई? सोचो कॉन्सेप्ट। क्यों? आपने डेफिनेशन तो पढ़ी हम लोगों ने, तो समझा नहीं, हमने समझने का प्रयास नहीं किया वो बोलना क्या चाहते हैं। केवल कुंभका, सांसों को रोकना। देखिए, रोकना और रुकना दो शब्द है कि नहीं है? रोकना और रुकना। रोकना में एफर्ट है, रुकना में एफर्टलेस। आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने रोका तो आप रुके, और रुक गए वो आप स्वतः रुके। रोकना और रुकना, आप समझ रहे हो? रोकना में एफर्ट है, तो एफर्ट हम लगाएंगे। अगर रोकेंगे सांसों को तो या तो वो अंत कुंभका होगा या बाह्य कुंभका, नॉट केवल कुंभका। या तो हम सांस लेके रोक पाएंगे या सांस छोड़ के रोक पाएंगे, है ना? लेकिन इसलिए केवल कुंभक क्या है? ऑटोमेटिक स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ विथ अवेयरनेस। ऑटोमेटिक, एफर्टलेसली, जब सांस रुक जाए, अवेयरनेस के साथ, अवेयर हुआ कि रुकी हुई है सांस। देयर इज ए नो इनहेलेशन, देयर इज ए नो एक्सहेलेशन। उसको बढ़ाना है, दैट इज प्राणायाम। एक्सपेंशन, प्राण से आयाम इति प्राणायाम, एक्सपेंशन ऑफ ब्रेथ। उसे एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है, राइट? तो ऑटोमेटिक स्टॉपेज विद अवेयरनेस, दैट इज केवल कुंभका। रोकना तो अंत कुंभक है, बाह्य कुंभक होगा, उसमें एफर्ट है। तो प्राणायाम करते समय विशेष ध्यान रखना है कि जब हम सांस लेंगे और जब हम सांस छोड़ेंगे तो सांस छोड़ने का समय ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हो गया? आसन, अब क्या आसन होगा, प्राणायाम हो गए। अब माइंड लेवल पे काम करना है, मेडिटेशन, ध्यान। पूछूंगा आप सब बता देंगे, तत्र प्रत्यय एकांता ध्यान, सबको याद होगा। क्या है मीनिंग उसका भाई? देखिए, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर आया धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार जो ऊपर के 5 आए हैं, दैट इज बहिरंग योग, और नीचे के 3 जो है अंतरंग योग। मैं आज इसमें एक अंग और डाल रहा हूं समझने की दृष्टि, जो प्रत्याहार के बाद अधारणा से पहले आएगा, दैट इज चंचलता। चंचलता क्या है? कोई बता सकता है अपने आप को अनम्यूट करके? चंचलता क्या है? हम बोलते हैं ना बच्चों को, ये बच्चा बड़ा चंचल है, क्या मीनिंग है उसका, चंचलता का? इतने बड़े हो गए हम, हमें चंचलता का मीनिंग नहीं पता। सोचो, और हम बोलते रहते हैं कितना चंचल है बच्चा, क्या मीनिंग है उसका चंचलता का? कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, इसलिए बेफिक्र होकर अनम्यूट करके आंसर दो। गलत होगा तो गलत होगा, एग्जाम थोड़ी है। सर, अनस्टेबल ऑफ माइंड। अनस्टेबल ऑफ माइंड, माइंड का अनस्टेबल होना, ठीक है, बहुत हद तक सही है। और कुछ? देखिए, इसको और सरल बनाता हूं। इसको हम बोलते हैं मंकी माइंड। मंकी माइंड नहीं बोल सकते, है ना? जैसे मंकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ जंप करता है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे जंप करता है, तो उसके लिए जरूरी बिल्कुल नहीं है सारे पेड़ आम के हों। जरूरी है क्या? या इमली के हों? जरूरी है? नहीं है, जंप करना है। मतलब मैनी सब्जेक्ट विथ मैनी थॉट्स,
जो पेड़ है वो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट पे जाके जब विचार आते हैं दैट इज डिफरेंट थॉट्स हो जाते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम घर पहुंच जाते हैं, सडनली असाइनमेंट की याद आती है, सडनली दोस्त का बर्थडे याद आता है, सडनली कुछ और याद आता है, सडनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है, तो इनका आपस में कोई लिंक है क्या? नहीं है, नो लिंक एट ऑल, है ना। तो मतलब मैनी थॉट मैनी सब्जेक्ट। बहन, आप जब आप आसन में बैठे हैं और उस दिन आपको बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे विचार आए, इट मींस आप चंचलता की स्थिति में हैं, अभी ध्यान की अवस्था तक नहीं पहुंचे अभी आप, चंचलता। अब आते हैं धारणा। आप धारणा समझ जाओ, जब चंचलता में वन सब्जेक्ट विथ मैनी थॉट्स हो जाता है, दैट इज धारणा, कॉन्सेंट्रेशन। हमारे मम्मी पापा बचपन बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट और स्टडी। क्या मतलब है इसका, कॉन्सेंट्रेट और स्टडी का? कभी समझा? भाई समझा? वो कह रहे हैं कि जो जो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, बस इतना पता है। वो ये कह रहे हैं पढ़ाई पे ध्यान लगाओ ना, उसका मीनिंग है अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स एक सब्जेक्ट हुआ, लेकिन साथ में मैनी थॉट भी है। मतलब उससे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, संबंधित विचार आ रहे हैं, तो आने दीजिए, रोकिए मत उसको रोकना नहीं है, उसको आने देना है, क्योंकि वो आपके डाउट्स है। और जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आप जब भी बैठेंगे सवाल करने के लिए, वो डाउट्स फिर आएंगे। तो एक बार उन डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो कौन सा, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेंट्रेट वन सब्जेक्ट विद मैनी थॉट्स, कि आज मैं सर ध्यान में बैठी या बैठा तो बस एक थॉट था मेरे दिमाग में, उससे संबंधित विचार बहुत थे। अगले दिन वो विचार नहीं आएंगे, क्योंकि विचारों का आप अंत कर चुके हो। आप अंत कर सकते हैं टीचर से पूछ के, अपने गुरु से पूछ के, कोई प्रॉब्लम होती है उनसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। तो वन सब्जेक्ट विद मैनी थॉट, दैट इज कौन, धारणा। तब ध्यान क्या हो गया? अल्टीमेटली वन सब्जेक्ट वन थॉट। अनवांटेड थॉट भी चले गए, और एक सब्जेक्ट बचा, एक थॉट बचा, दैट इज वन सब्जेक्ट वन थॉट, दैट इज ध्यान। तत्व प्रत्यय एक कांत का ध्यान। अब जाके वो डेफिनेशन आई है। लंबे समय तक टिकटिकी लगाए, लंबे समय तक बैठना, दैट इज ध्यान। ठीक है ना। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ध्यान में बैठा था या नहीं बैठे थे। आपका मन खुद जानता है कि आप चंचलता की स्थिति में थे, धारणा की स्थिति में थे, कि आज आपका ध्यान। ध्यान में तीन अवस्थाएं हैं, देखिए, सीन, सीयर एंड ऑब्जेक्ट। सीन मतलब देखना, सीयर मतलब देखने वाला, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। तीन चीजें हैं ध्यान में, और कुछ नहीं है इसके बाद। सीन, सीयर, ऑब्जेक्ट। जब ये तीनों एकाकार हो जाते हैं, मिल जाते हैं, दैट इज समाधि। वो ही समाधि है, सीन, सीयर, ऑब्जेक्ट, यू मर्ज विद देम। और इसी को हमारे साइंस में बोला गया है, बोला गया है त्रिपुटी अवस्था। इसी को त्रिपुटी अवस्था बोला गया। When scene, seer, object merge together, तीनों मिल गए, then त्रिपुटी अवस्था, that is समाधि। समाधि की अवस्था में चर्चा करेंगे, कहीं मौका मिलेगा तो। सभी निर्भीत, है ना, संप्रज्ञा, वो लंबा विषय हो जाएगा। अभी मैं आपको ग्लिम्स दे रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, साइंस समझा रहा हूँ उसके पीछे का। हीलिंग करने का साइंस क्या है, ये साइंस, ये समझना जरूरी है, तभी आप हील कर पाएंगे किसी को। आप खुद नहीं जानते धारणा क्या है, ध्यान क्या है, आप कैसे दूसरों को समझाएंगे ना। तो ये मनोमय कोश पे आपको ये काम करना है। अकार, उकार, मकार की चांटिंग भी करनी है। ओम की चांटिंग हम करते हैं, है ना। कैसे करते हैं? बस ओम बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। पता ही नहीं है अ उ म में कैसे रेशियो बिठाना है। मैं बोलूंगा 1:2, 1:1:2 रेशियो होना चाहिए कायदे से। अगर आकार 10 सेकंड का है, उकार भी 10 सेकंड का होगा, मकार 20 सेकंड का होगा। रामायण में बताया गया है, हमारे ओमकार की ध्वनि होनी चाहिए घंटानंद ध्वनि। जो मंदिर में घंटा बजता है ना, उस तरह की ध्वनि का बोला गया है, घंटानंद ध्वनि। मंदिर में घंटा कैसे बजता है? टन
ओ। अगर मंदिर घंटा ऐसा बजता रहे टन टन टन, क्या होगा? सिर भारी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हम लोग करते हैं अवतार को बहुत लंबा खींचते हैं, उसमें सांस हमारे मन में अंदर रहती है, और को बहुत लंबा खींच देते हैं हम। और थकान लगती है, तो क्या हो गया? है ना? तो थकान नहीं लगनी चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए ना, रिलैक्स होना चाहिए। तो जब हम मेडिटेशन बैठते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, देखिए घंटानंद ध्वनि की तरह जाना चाहिए, आराम से रिदमिक वे में, अपने आप 1:1:2 का रेशियो बन जाए, अपने आप बन जाए। कोई एफर्टलेसली नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं लगाना। यहाँ ये है माइंड लेवल पे हीलिंग का ध्यान करना है। तो कैसे? और विज्ञान में भी क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे कौन सी टेक्निक है हम बता देंगे, अभी चल रहा है इंटरेक्शन। चीजें कैसे करनी है उसको समझना पहले, फिर करवाना, वो इंटेलेक्चुअल। वो आप गुरु के साथ बैठ के सत्संग में, जहां भी आपके जो जो डाउट्स हैं उनका जो सॉल्यूशन मिल सकता है, वहां जाके सॉल्यूशन करिए, डाउट्स को हटाइए, तो जो समझिए चीजों को। जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, अब आते हैं आनंद में। आनंद में कोई बड़ा अच्छा है, सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति। हमारा कोई ऐसा है यहाँ पे जो बोलेगा सर मैं तो दुख प्राप्ति और सुख निवृत्ति का नहीं। एवरीवन वांट्स सुखा, है ना? सुख सबको चाहिए, दुख किसे चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। अच्छा मैं ये बोलूं कि आपको परमानेंट सुख चाहिए टेम्परेरी सुख चाहिए? तो आप सब क्या बोलेंगे? परमानेंट चाहिए, डेफिनेटली। टेम्परेरी सुख तो चाहिए हमें भाई। लेकिन अगर मैं पूछूं आपके नजर में सुख क्या है, ब्लिस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? नौकरी लग जाए मेरी, है? आप क्या बोलेंगे? किसी की शादी हो जाए सर मेरी, है ना? मतलब एक टारगेट है, कोई भी एक टारगेट हो सकता है ना? पैसा आ जाए सब बहुत सारा, 1 करोड़ जीत जाऊं मैं ड्रीम 11 में, 1 करोड़ जीत जाऊं, मेरा तो ये सपना है ना? उसके बाद कुछ मैं ब्लिस हूं। तो ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है? ये टेम्परेरी हुआ, क्योंकि वो जब अचीव हो जाएगा तब तो आपको दूसरे की लालसा हो जाएगी, किसी और चीज की। होगी कि नहीं होगी? होती है डेफिनेटली, है ना? हम भी स्टूडेंट थे, पहले पीएचडी में एडमिशन मिल जाए, वो मिल गया, उसके बाद नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई, शादी हो जाए, शादी हो गई, बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए। अब क्या? अब बच्चे पढ़ लें, अब बच्चे मोबाइल छोड़ दें, है? अब बच्चों की नौकरी लग जाए, देयर इज नो एंड। ठीक है ना? तो परमानेंट सुख क्या है? कभी महसूस किया है आपने? नहीं किया होगा, आज आपको महसूस कराता हूं परमानेंट सुख। लेट्स इसमें भी एक एग्जांपल पकड़ते हैं, ठीक है ना? आप में से कौन सा स्टूडेंट लूं? मानो मैंने राकेश को ले लिया। चलिए, अब राकेश ने सोचा सर मुझे भी योग में विद्या हासिल कर, मुझे भी योगा पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है पढ़ो बेटा, अच्छी बात है। सर कहां से करूं? अब चूंकि मैं जिस संस्था का एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो शूट भी करता है इस स्टोरी के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ। मैं एस व्यासा से पढ़ा हूं, मैंने एडमिशन सन 2000 का बैच था, फर्स्ट बैच था। वहां पे कई नियम थे, अब तो बहुत चेंज हो गए खैर। वहां नियम ये थे कि एक बार आप अंदर आ गए ना कैंपस में, तो आ गए, आप बाहर नहीं आ सकते। देयर इज ए नो न्यूज़पेपर, देयर इज नो टीवी। सुबह मॉर्निंग क्लास होती थी, मॉर्निंग 5 to 9 o'clock क्लासेस रेगुलर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का टाइम रहता था, ठीक है? तो और खाने में साउथ इंडियन फूड ओनली, ठीक है? अब भाई राकेश को मैंने बोला तुम ऐसा वैसा जाओ, अच्छा कोर्स है करके आओ। जाने से पहले मैं राकेश से पूछा, राकेश तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है जिसके बिना तुम रह नहीं पाते? तो खाना आदमी का, खाने बिना आदमी रह नहीं सकता। एवरी डे, एवरी आफ्टर 2 hours हमें कुछ चाहिए खाने, देखा जाए तो, है ना? खाने बिना नहीं रह सकता। तो राकेश आपका फेवरेट फूड क्या है जिसके बिना आप रह नहीं सकते? बताइए अनम्यूट करके। लड़कियों को तो गोलगप्पे होते हैं,
तुम्हारा कुछ होता है तो बताओ, क्या हुआ राकेश, आवाज नहीं आ रही? चलो किसी और को एग्जाम्पल में पकड़ते हैं फिर। जागृति, तुम्हारा क्या है फेवरेट फूड जिसके बिना तुम रह नहीं सकती? डाइंग विद दैट, चाहिए सर चाहिए, अनम्यूट करके बताओ। या कोई और बता दे, मुस्कान है, अभिषेक है, कोई भी बता दे। एग्जाम्पल चाहिए मुझे समझाने के लिए, डर क्यों रहे हो? है तो है। हाँ कौशिक, कौशिक बताओ। पनीर की सब्जी के बिना नहीं रहा जा सकता। अच्छा, जागृति को भाई पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, पनीर के बिना वो नहीं रह सकती। चलिए, तो लेट अस शिफ्ट, राकेश से हम जागृति पे आते हैं। जागृति कोर्स करने फिर एस व्यासा गई, ठीक है, एमए में एडमिशन लिया। जाने से पहले उसने अपने घर में पनीर की सब्जी बनवाई अपनी माँ से, बढ़िया वाली, खूब खाई, टिफिन में ले गई, ट्रेन में ले गई, ट्रेन में भी खाई पनीर की सब्जी। और जैसे ही उसने एंटर किया एस व्यासा में, अब उसका कोर्स शुरू। 7 दिन तो मजे में निकले, नए दोस्त बने, कोर्स शुरू हुआ 5 बजे से लेके, जागृति पढ़ती रही, करती रही। 7 दिन बाद उसको पनीर की अचानक याद आ गई, अब बहुत दिन हो गए पनीर नहीं खाया। पनीर की याद आते से ही मन कहाँ चला गया? अपने घर पे चला गया। मम्मी से फोन पे बात हुई, वैसे तो वहां फोन ही नहीं है, देखिए एक लैंडलाइन फोन था जो 15 दिन में एक बार मिलता था कॉल करने के लिए। आपने फोन लगाया, मम्मी पनीर की बहुत याद आ रही है, बहुत दिन से पनीर ही नहीं खाया, यहाँ तो सांबर, रसम, चावल, इडली यही मिल रहा है। सांबर में वही गीली वाली भिंडी मिल रही है, रसे वाली भिंडी जो नॉर्थ वाले कम खाती नहीं है, साउथ में मिलती है वो बस, है ना। अब लेकिन बेटा कोर्स तो करना है, माँ ने बोला कोई बात है, पनीर का भगा जा रहा है, पनीर बाद में खा लेना, करके आ तू। माँ ने बोला ठीक है, जागृति को जोश आ गया। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, नो पनीर। 6 महीना, 1 सेमेस्टर निकल गया, नो पनीर। 1 साल, नो पनीर। 3rd सेमेस्टर, नो पनीर। 2 साल, एमए खत्म, डिग्री ले ली, लेकिन अभी तक पनीर नहीं मिला है। डिग्री मिल गई है, पनीर नहीं मिला। अब कोर्स खत्म तो अभी वापिस अपने घर आ रही है ट्रेन में, और रास्ते में सोच रही हैं घर पे जाके तो पनीर खाना है। और मम्मी को भी पता है कि भैया पनीर इसको अच्छा लगता है, इसका फेवरेट फूड है। तो मम्मी ने भी उस दिन पनीर बनाया, फिर अच्छा सा, बेटी आ रही है इतने 2 साल बाद, ढंग से बनाया उसने, प्यार से बनाया, है ना। सबसे ज्यादा अच्छा खाना मम्मी बनाती हैं, प्यार उसी में रहता है। जागृति घर पहुंची, हाय हेलो हुई, सब ठीक हुई, घर से फ्रेश होके आई, डिनर टेबल पे बैठ गई और पनीर की सब्जी सामने आ गई। अब कटोरी में पनीर, चम्मच से पनीर लिया और आंख बंद करके खाया। आहा, क्या स्वाद आया जागृति, पूरी कटोरी खा गई। मम्मी ने बोला बेटा इतनी खानी, 1 कटोरी हो। ठीक है मम्मी दे दो 1 कटोरी और खानी। उसके बाद बेटा मन नहीं भरा होगा, 1 कटोरी और ले ले। नहीं मम्मी पेट भर गया, नहीं बेटा और ले और खा, 2 साल से नहीं खाया पनीर, देख कमजोर होके आई है तू, वहां से खा ले और पनीर, है ना। और पनीर दे दिया। 4थे कटोरी में जाकर बोला ना अब नहीं खाऊंगी मैं पनीर, अब तो मुझे पेट खराब हो जाएगा मेरा। तो बच्चों अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि फर्स्ट बाइट में ऐसा क्या था जो सेकंड बाइट में भी नहीं था? फर्स्ट बाइट में क्या था? अब आप आंख बंद करके 10-15 सेकंड सोचिए, कोई भी एक्टिविटी ऐसी जो आपने फर्स्ट टाइम की थी, फर्स्ट टाइम जब आपको बहुत ब्लिस हुआ था, बहुत खुशी मिली थी उसे करने में, तो फर्स्ट टाइम आपको क्या हुआ था आपके लिए, उस समय क्या फीलिंग थी? क्योंकि सेकंड बाइट में नहीं थी वो फीलिंग, वो फर्स्ट में ही होता है, वो जो ब्लिस होता है ना फर्स्ट में ही होता है। क्या था वो? था थॉटलेस स्टेज इन माइंड। उस समय माइंड में एक भी विचार नहीं था, ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। उसके इमीडिएटली बाद बहुत सारे विचार आए, लेकिन जो फर्स्ट था ना, जब जीभ से लगा था, वो स्टेज
थॉटलेस स्टेज थी। अगर ये स्टेज रिमेन्स रहे, दैट इज परमानेंट ब्लिस, रिमेन रहना चाहिए। अब आप कह सकते हो सर ये कैसे मिलेगा थॉटलेस स्टेज, ये कहां मिलेगी? इसको एच आर नागी जी ने बड़ा अच्छा नाम दिया है, बोलते साइलेंस, साइलेंस इज ब्लिस। तो साइलेंस कहां मिलेगा सर? साइलेंस हम कैसे पता करेंगे साइलेंस है कि यार विश्व में साइलेंस अवस्था में, कैसे मालूम पड़ेगा? साइलेंस मिलेगा कहां? क्वेश्चन ये उठता है। अच्छा, आपने दूरी, डिस्टेंस की डेफिनेशन पता है? डिस्टेंस किसे कहते हैं? एक कॉमन मैन के अनुसार डिस्टेंस, दूरी, दूरी किसे कहते हैं? गैप बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट इज डिस्टेंस। किसी भी दो पॉइंट का जो गैप है ये तो दूरी है, डिस्टेंस है ना? तो गैप बिटवीन टू थॉट्स, दैट इज साइलेंस। गैप बिटवीन टू थॉट्स, वहां क्या है? देयर इज नो थॉट्स। आप समझ मेरी बात को? गैप बिटवीन द टू थॉट्स, देयर इज नो थॉट्स। उसको बढ़ाना है, वो बढ़ जाएगा, दैट इज परमानेंट ब्लिस, क्योंकि आप उसी अवस्था में रहेंगे। समझे आप? दैट इज आनंदमय कोश। लेकिन हमें बहुत कम समय का अनुभव होता है इसका। किसी गरीबी को दान देते हैं ना, सेवा भाव से करते हैं, तो वो थोड़े समय के लिए आता है, थॉटलेस, फिर गायब हो जाता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, हाँ हमारा स्वार्थ ना था, स्वार्थ नहीं था, करे ना तो थोड़ी देर के लिए वो अवस्था आती है, फिर गायब हो, फिर विचार फिर आ जाता। उसको बढ़ाना, वो कब कब बनेगा? जब सारी शुद्धि होंगी, घट शुद्धि, कर्म शुद्धि, स्नायु शुद्धि, प्राण शुद्धि, मन शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि। जब ये शुद्धियां हो जाएंगी सारी, तब विचार अपने आप कम हो जाएंगे, है ना? तो इन शुद्धियों को दूर करना है, अशुद्धियों को ये दूर करना है, ये है ब्लिसफुल कंडीशन। समझ में आ रहा है? तो ये है। अब आप देखिए, सारे कोश हो गए, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में, ये कोश भी हो, ठीक है ना? तो फिर योग क्या है? अब एक कहानी और सुनाता हूं जिससे आप योग समझ जाएंगे। एक व्यापारी था, ये गरिमा जानती होगी, मेरे मुझसे कई बार सुन चुकी है कि मेरी पीएचडी स्टूडेंट रही है वो। तो सर वो सोच रही है कि सर का तो लेक्चर शुरू हो गया, सर ने तो वही अपना पकड़ लिया ट्रैक। लेकिन अगर आप लोगों ने सुना हो तो बता देना मुझे। एक व्यापारी था, उसकी 4 पत्नियां थी। कितनी? 4। ये आज की डेट में तो एक भी बहुत मुश्किल से रखनी पड़ती है, लेकिन उसकी 4 थी, ठीक है? आप उसकी मेंटल स्टेट समझ सकते हो, आप 4 बीवी रखा हुआ था। वो बड़ा लग्जरियस लाइफ बिता रहा था, बहुत पैसे वाला था। लेकिन समय कभी आता है, सबका ही आता है, उसका भी समय आया, बीमार पड़ा, बिस्तर पे लेट गया, जाने का समय आया। अब जाने का समय जब आया तो अपन लोग ना रिकॉल करते हैं अपनी यादें, कैसा जीवन था यहाँ पे, तो वो भी रिकॉल कर रहा था। उसने कितनी लग्जरियस लाइफ मैंने यहाँ गुजारी है, अब मैं ऊपर जाऊंगा, वहां मुझे कैसी कंपनी मिलेगी। ये विचार आते ही सही उसने सोचा क्यों नहीं चारों में से किसी एक को अपने साथ ले चलता हूँ, तो वहां कंपनी भी रहेगी मेरे साथ, है ना? तो ये विचार आते से उसने 4th वाइफ को बुलाया। विल यू गिव मी कंपनी? क्या तो मुझे कंपनी दोगी? कहती है व्हाट, नो वे, और नो वे कहकर चली गई। उसे बड़ा दुख हुआ। नहीं, इससे पहले एक चीज थी, जो 4th वाइफ थी उसको बहुत प्यार करता था और उसको सबसे अच्छी चीज ही देता था, ही नेवर कॉम्प्रोमाइज, सबसे बेस्ट चीज ही 4th वाइफ को देता था। जो 3rd वाइफ थी उसको भी वो बहुत प्यार करता था। जब भी बिजनेस के काम से वो बाहर जाता था, किसी सेमिनार में जाता था, विदेश में जाता था, 3rd वाइफ को ही लेके जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी 3rd वाइफ बहुत सुंदर थी, उसको प्राउड था। तो बाहर साथ में लोग देखेंगे
तो जेलस फील होगा कि सुंदर वाइफ है इसके पास। तो लोगों को चिढ़ाने के लिए हमेशा अपने साथ थर्ड वाइफ को ही लेके जाता था, फोर्थ को लेके नहीं, थर्ड वाइफ को लेके जाता था। सेकंड वाइफ को वो तब बुलाता था अपने पास जब उसकी लाइफ में कोई समस्या आ जाती, तो समस्या के समाधान के लिए वो सेकंड वाइफ को याद करता और सेकंड वाइफ उसको सही राय देती। फर्स्ट वाइफ के बारे में उसे पता ही नहीं था, वेदर शी लाइव और डेथ कहाँ है, क्या भी सोचा ही नहीं उसने फर्स्ट वाइफ। तो क्या सोचता तो शादी क्यों करता, उसे पहली वाइफ को सोचा ही नहीं। अब समय आया मृत्यु का उसके पास, अब वो लेटा हुआ था, अब उसको रिकॉल करना था कि इतनी अच्छी लाइफ गुजारी, तो फोर्थ वाइफ को पहले बुलाया, विल यू गिव मी कंपनी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नो वे, चले गई। मतलब जो हमेशा उसको बेस्ट चीज देता था, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने सिर्फ नो वे के चले गई। कोई अगला क्वेश्चन नहीं, क्यों, क्या कारण है, कुछ नहीं पूछा। उसे बड़ा दुख हुआ, जिसको मैंने हमेशा अच्छी चीज दी और नो वे के चले। फिर थर्ड वाइफ याद आई, जो उसको हमेशा अपने साथ लेके जाता था, तो बहुत सुंदर थी, उसको बुलाया, उसको भी सेम क्वेश्चन, विल यू गिव मी कंपनी? तो बोला व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या बोल रहे हो? आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ। एज सुन एज यू डाई आई कैन रीमैरी, जैसे आप मर सको मैं तुझसे शादी कर सकूं। अब तो उसको लगा किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया, आंखों से आंसू आने लगे उसके, रोने लगा, क्यों मेरे मरने का इंतजार कर रही है, दूसरी शादी करने वाली है। बड़ा दुख हुआ उसे। फिर उसे सेकंड वाइफ याद आई, जो हर समस्या का समाधान देती। उसको बुलाया, सेम क्वेश्चन, विल यू गिव मी ए कंपनी, तुम मुझे कंपनी दोगी? उसने क्या बोला, ओके आई कैन गिव यू कंपनी, मैं तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ, बट टिल, कहां तक? टिल शमशान घाट, सिर्फ शमशान घाट तक ही मैं आपके साथ जा सकती हूँ, उसके आगे नहीं, अंटिल द ग्रेव। बस अब तो उसको लगा कि जिंदगी में कुछ नहीं रह गया। फर्स्ट वाइफ जिसके बारे में सोचा ही नहीं, उसको क्या फायदा। जब ये तीनों के बारे में सोचा, कोई अपने साथ जाने तैयार नहीं है, तो चुपचाप आंख बंद करके लेट गया। Then suddenly one voice came, एक आवाज आई, आई विल गिव यू कंपनी, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। देखा तो कौन? फर्स्ट वाइफ, बड़े पतले दुबले माल न्यूट्रिशन टाइप हो रही। उसे बड़ा दुख हुआ कि जिंदगी भर जिसके बारे में नहीं सोचा, वो ही मुझे कंपनी देने के लिए तैयार है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इन अवर लाइफ इज दिस, हम सबकी लाइफ में 4 वाइफ्स। फोर्थ वाइफ और फिजिकल बॉडी, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज, वी गिव ऑलवेज बेस्ट। कहीं लग नहीं जाए, सावधान चलना है, कैसे चलना है, धूप में, एसी में, बेस्ट, नेवर कॉम्प्रोमाइज, वी गिव ऑलवेज बेस्ट। थर्ड, हमारी गाड़ी, बैंक बैलेंस, पैसा, शो अप, शो टू अदर्स, और जैसे हम मरते हैं वो दूसरे पे चला जाता है। एज सून एज यू डाई, जैसे ही आप डाई वो दूसरे पे चला जाता है। सेकेंड वाइफ, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, जब समस्या होती है आप जाते हैं, आप बैठते हैं, लेकिन अब वो भी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल ने ले ली, वो जगह भी मोबाइल ने ले ली। और फर्स्ट कौन है? हमारा इनर सोल, हमारी आत्मा। वी नेवर थिंक ऑफ दैट, हम कभी उसके बारे में नहीं सोचते हैं। सोचना चाहिए, बैठना चाहिए, हमारा मन क्या कह रहा है, क्योंकि जो लास्ट बचा था हमारा इंद्रिय शुद्धि, वो इसी से होगी। हमारा मन कहाँ भाग रहा है, हमारा मन किस दिशा में जा रहा है, हमें सोचना पड़ेगा, हमें रोकना पड़ेगा शुरुआत में उसे। अभी मन आपको चला रहा है, माइंड कंट्रोल यू, ना कि यू कंट्रोल्स माइंड। जब तक आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, योग की साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए ही पतंजलि ने साधकों की 3 अवस्थाएं बनाई, निम्न साधक, मध्यम साधक और उच्च साधक। निम्न, आप और हम जैसे लोग अष्टांग योग करिए, तब आप माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे। मध्यम साधक हैं तो आप तब स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, क्रिया योग कर सकते हैं और उस मन पे कंट्रोल पा सकते हैं, ये हीलिंग कर सकते हैं। उच्च साधक हैं वो ध्यान और समाधि के माध्यम से अपने आप। तुम्हारे एशियन टेस्ट में सब कुछ है, ये तो आज आ गया है, ये तो आज इस दिशा में हम जाने लगे हैं। जब रामदेव जी ने या ऐचा नागेंद्र जी ने, केवल धाम के ओपी तिवारी जी ने, केवल्यानंद जी ने तो
बताया, लोगों को समझाया, रिसर्च करी, उसके माध्यम से हम अब जानने लगे। नहीं तो हमारे स्क्रिप्ट में तो सदियों से था। अगर योग का सब्जेक्ट नहीं होता तो आज शायद आप पढ़ भी ना रहे होते, आप समझ भी ना रहे होते। बीमारी की जड़ माइंड में है, माइंड को कंट्रोल करना है। आसन प्राणायाम तो माध्यम है उसको कंट्रोल करने के, इसलिए बोला है शुरू के 5 जो है ना, इनडायरेक्ट कंट्रोल योर माइंड, दम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनडायरेक्ट कंट्रोल योर माइंड, और धारणा ध्यान समाधि डायरेक्ट कंट्रोल, इसको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरा समय शायद हो चुका है या अगर समय बचा है तो क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं। किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और आई होप सो कि जितना भी मैं 1 घंटे में दे पाया आपको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ होगा, और आप पढ़ेंगे और डिटेल तो देखिए आपको पढ़नी पड़ता है, सिर्फ एक लेक्चर सुनने से ही चीजें नहीं आती। अगर एक लेक्चर सुनने आ जाती तो फिर कोई बात ही नहीं थी। अब इस चीज को आप पढ़िए, अपने टीचर के साथ बैठिए और मंथन करिए। देखिए ज्ञान योग बड़ी अच्छी चीज है, श्रवण आपने सुन लिया मेरी बात है, अब मनन करना है उसको, फिर निधि ध्यान उसको अपने जीवन में लेके आ। दैट इज ज्ञान। हम सिर्फ श्रवण करना ही जानते, हम श्रवण ही करते रहते, है ना। विवेकानंद जी ने साफ बोला है, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे अष्टांग राज योग, ऑल पाथ्स लीड्स टू द सेम गोल, दैट इज मोक्षा। आपको जो पाथ अच्छा लग रहा है आप वो अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो मोक्ष तक ही लेके जाएगा। लेकिन उस अपनाने का मतलब अपने जीवन में होता है। अब मैं क्वेश्चन आंसर के लिए कोई डाउट हो तो अपने आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Anyone who have any doubt can raise their hand or write their question in the chat box. जो भी आपको सुविधा हो उसके अनुसार आप चैट बॉक्स पे या हैंड रेज कर लीजिए। कौशिक सरकार, कौशिक, हाँ सर कौशिक अनम्यूट करिए बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर जैसे कि आपने बताया ना कि जैसे कि 2 थॉट्स के बिटवीन में होती है साइलेंस, ठीक है, तो उससे हम लोग शुद्धि करने से वो स्टेज पे रह सकते हैं। तो सर हर वक्त हम लोग वो प्रोसेस कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग का बहुत सारा काम रहता है। तो इजी वे में हम लोग कैसे उस चीज को हम लोग लाभ कर पाएंगे? हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं ये तो बिल्कुल ट्रू बात है बेटा। जब हम चूंकि समाज में रह रहे हैं तो अपने जीवन यापन के लिए हमें कर्म भी करना है ना, निष्काम कर्म भी करने। आप जितना अपने आप को डिटैच होके काम करेंगे ना, डिटैचमेंट, एक्चुअली वी नो ओनली अटैचमेंट, वी डोंट नो हाउ टू डिटैच। हम अटैच होना तो जानते हैं लेकिन डिटैच होना नहीं जानते। ये मैंने काम किया है सर, ये काम मेरा है ना, मैं आ रहा है उसमें। और जब इसमें डिटैच होने की बात आती है तब बहुत दुख होता है। जितना अटैच होंगे उतने विचार आप मन में लेके आ रहे हैं, और फिर जब आप जानते नहीं है हाउ टू डिटैच तो विचार भी ज्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं सेल्फलेस सर्विस, जो भी काम करिए उसमें आप फल की इच्छा मत रखिए। ये मत सोचिए कि मेरा काम है। उससे एक तो बात ये होगी कि आपके थॉट्स कम हो जाएंगे बहुत सारे, पहला। दूसरा, फिर जब आप सुबह जब ध्यान लगाएंगे तो आप उस अवस्था को पा सकते हैं या टच कर सकते हैं। और जब उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो प्राण फ्लो वो इतना स्लो हो जाता है, हमारी ब्रेथ रेट इतनी स्लो हो जाती है कि हमें पूरे समय हम उसी अवस्था में रह के ही काम करते हैं। जब हमें अटैच ही नहीं है, समझ रहे हैं, जब अटैच ही नहीं है तो स्वार्थ कहां से आ जाएगा इस चीज में। जब स्वार्थ ही नहीं आएगा तो रिलैक्स हो गया। अभी रिलैक्स क्यों नहीं है? हमारा स्वार्थ किसी ना किसी रूप में स्वार्थ है। पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर अच्छे आ जाए, स्वार्थ है। कई लोग वेबिनार ज्वाइन कर भी रहेंगे, क्यों? सर ने बोला है, अटेंडेंस चाहिए, ये स्वार्थ होगा। मन से हो सकता है नहीं, कई लोग नहीं आए हों मन से, और कई लोग ऐसे भी हों जो मन से नहीं आए हों, हो सकता है लेक्चर सुनने का अच्छा हुआ मैंने सुन लिया लेक्चर, काम का है। देखिए तो हमारा माइंड गेम है, ये सीधी सी बात है कि आप माइंड को किस दिशा में लेके जा रहे हो, कैसे लेके जा रहे हो, उस पर ही तो कंट्रोल करना है। जब कंट्रोल हो जाएगा थॉट्स अपने आप गए।
और जब थॉट्स अपने आप करते हैं रिलैक्स। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एक प्रश्न है चैट बॉक्स में ही, जागृति का है। वो पूछ रही है कि आसन करने का बेस्ट तरीका क्या है जो बॉडी को हेल्प भी करे और मन को कैसे जीता जाए। हाँ, आसन करने का बेस्ट तरीका क्या है जो बॉडी को हेल्प भी करे। देखिए तरीका तो मैंने बताया था, लेकिन इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि आसन करने में जब मन नहीं लगता तो मन कैसे लगाया जाए। मुझे लगता है ये बात आप ये पूछना चाहते हैं कि आसन करने में मन कैसे लगाया जाए, क्योंकि सुबह सबसे दिक्कत है सुबह उठने में ना। आप उठे हुए तभी तो आसन करोगे, उठोगे नहीं तो आसन कैसे। तो आप पहले एम और ऑब्जेक्टिव में अंतर समझिए। देखिए एम होता है एक, और एम को फॉलो करने के लिए हम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। जब वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं तो हम एम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर आपका एम ये है कि आसन मुझे करने हैं सुबह, कैसे करूं, सबसे पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाइए। क्या कि ठीक है अभी मैं 1 घंटा आसन नहीं कर सकती, मैं सिर्फ 10 मिनट आसन को दूंगी। 10 मिनट दे सकते हो ना आप, 10 मिनट दूंगी। 10 मिनट में मैं 5 या 6 सूर्य नमस्कार लगूंगी। ठीक है, आपने लगाया और 7 दिन तक लगातार करूंगी। ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव हुआ। अगर आपने 7 दिन बिना नागा किए जो ऑब्जेक्टिव तैयार किया था वो पूरा कर लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एक विल पावर जाता है, और ये विल पावर आगे काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। तो स्मॉल स्मॉल जरूरी आप आसन के कुछ बनाइए, पहले आप दूसरा बना लीजिए कि मैं दिन में सिर्फ 2 घंटे ही मोबाइल देखूंगी, उसके बाद नहीं देखना 3 दिन तक, 3 दिन तक नहीं देखूंगी। ठीक है, वेरी गुड। जब तक विल पावर अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास, और वो आएगा आपका माइंड पे कंट्रोल करने से। जब आपने माइंड पे कंट्रोल कर लोगे फिर आप आसन कैसे भी करोगे, सुबह वो आपका बेस्ट ही होगा। बेस्ट कोई तरीका नहीं होता, सेल्फलेस करना है, कोई हार्ड कोशिश नहीं करनी है। बेस्ट आसन, आसन का बेस्ट क्या है ये बताइए। आप एडवांस आसन सीखना चाहती है वो बेस्ट, कि भाई अभी मैं बिगिनर से हूं, एडवांस स्टेज पे जाना है मुझे, उसकी भी प्रोसेस है, लेकिन सीधे आप एडवांस पे नहीं जा सकते, है ना। सिस्टोमेटिक बट रेगुलरिटी, निरंतरता होनी चाहिए। लेकिन वो कब आएगी, जब आपका मन पे कंट्रोल आ जाएगा, आत्मविश्वास आएगा। आसन अपने आप बेस्ट। जरूरी थोड़ी है कि कई आसन ही करता है, कई लोग प्राणायाम के माध्यम से भी कर लेते हैं अपने आप को फिट, है ना। ये अपने ऊपर है, लेकिन वही है मन को कैसे जीता जाए। तो मन को अपने छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करके और मन को हराकर ही मन को जीता जा सकता है। किसी को जीतना है तो उसको हराना है ना। तुमने खुद ही आंसर लिखा है, मन को कैसे जीता जाए, मन को हरा के जीता जाए। मन को हराओ। जो बाहर भाग रहा है, इनसे बाहर भाग रही है, कभी रास्ते से जाते हो, अचानक चाट की खुशबू आ गई, मन घूम जाता वही चाट की दुकान पे, वही खा लेते हैं। क्या होता है, एक से क्या होगा, डायबिटीज वाला एक मिठाई से क्या होगा, है ना। तो मन पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, और वो आएगा छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव तैयार करिए और उसको पहले पूरा करिए। तब वो पूरा ही नहीं होगा तब देख लीजिए आपका मन कितना कमजोर है। आप 3 दिन के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वो भी तो आपसे नहीं हो रहा, तो बड़े ऑब्जेक्टिव का क्या होगा। ठीक है, ओके। सर अगला प्रश्न अभिषेक अभिषेक। शेखर का है। प्लीज डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ धारणा एंड ध्यान अगेन। अच्छा, देखिए धारणा मतलब कंसंट्रेशन में बताया था, जिसमें बताया था वन सब्जेक्ट विद मेनी थॉट। जब आप किसी एक सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उससे संबंधित विचार मतलब डाउट्स अगर आते हैं तो उन्हें आने दीजिए और उसका निवारण करिए। वो निवारण हो सकता है आपके हाथ में हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो जहां मिलेगा आपके गुरु से पूछ के, सत्संग में जाके, जिससे भी पूछ के आप पढ़ के उसको दूर करिए। और जब दूर हो जाएंगे, जब वो वाला थॉट अगर दोबारा आता भी है तो वो विचार नहीं आएंगे वो वाले, क्योंकि वो उनका नाश ही कर दिया है आपने, उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही लिया है आपने, है ना। तो वन सब्जेक्ट विद मेनी थॉट धारणा, और जब वन सब्जेक्ट वन थॉट हो जाता है, लंबे समय तक एक प्रक्रिया बनी रहे एक सब्जेक्ट के साथ, वो ध्यान। ठीक है, और कोई
सर योगा प्रैक्टिस करने के सीक्वेंस का होना चाहिए, शेड्यूल कैसे सेट करें? हाँ देखिए, मेनली अपने इंडिया में अगर देखा जाए जो आसना प्रैक्टिस, रामदेव जी तो खैर 15-20 सालों से आए हैं, उससे पहले दो रिनाउंड जो जिनको काफी साल हो गए हैं, वो एक केवल धाम है और एक एस व्यास है, जो काफी, एक बिहार मुंगेर भी। लेकिन आसन की प्रैक्टिस ज्यादातर यहाँ चलती थी पहले केवल धाम में और कहाँ पे, एस व्यासा बेंगलुरु में। आपको योगा प्रैक्टिस करने का सीक्वेंस चाहिए, सीक्वेंस। अब देखिए, एस व्यासा वाले पहले खड़े होके करते हैं, फिर बैठ के, फिर पेट के बल और पीठ के बल। और केवल धाम वाले पहले पीठ, फिर पेट, फिर बैठ के और फिर खड़े होके जाते। ठीक है, आप बोलोगे क्या डिफरेंस है? और दोनों अपने अपने लॉजिक देते हैं। आप देखिए, केवल धाम वाले क्या कहते हैं? केवल धाम कहते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है या बच्चा जब आता है तो सीधा पीठ के बल ही लेटा, इससे पहले पीठ के बल आसन, पीठ के बल। उसके बाद बच्चा करवट लेना सीखता है तो पेट पे आता है, तो पेट के बल आसन। फिर वो बैठना सीखता है तो बैठते हुए आसन, उसके बाद खड़े होना सीखता है तो खड़े हुए आसन। ये सीक्वेंस बताया है। एस वाला बोलते हैं, वो भी कहते हैं, वो भी ठीक है उनका, ये कहते हैं कि हमें चूंकि दुनिया में तो हम आ ही चुके हैं, अब हमें प्रसव से प्रतिप्रसव की ओर जाना है, मतलब उल्टी जर्नी करनी है हमें तो अविद्या से विद्या की ओर जाना है ना। तो हम पहले खड़े रहेंगे, हमें मोक्ष प्राप्त करना है ना, हमें सब छोड़ना है, हमें सब त्यागना है, हमें संसार की ओर नहीं जाना है। संसार की ओर जाना है इसलिए हमें खड़े होना है, भागना है उस ओर। लेकिन पहले खड़े होके फिर बैठ जाएंगे, फिर हम पेट के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे, और फिर शवासन और बॉडी ऊपर छोड़ देंगे। ये लॉजिक है। तो अंततः आप कोई भी सीक्वेंस अपना लीजिए, उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बशर्ते मैंने बताया था स्पाइन को विशेष ध्यान रखते हुए अपना प्रैक्टिस तैयार करिए। अगर आप पूरे स्वस्थ हैं तो आपकी स्पाइन हर दिशा में मूव करनी चाहिए, राइट लेफ्ट, आगे पीछे, राइट ट्विस्ट लेफ्ट ट्विस्ट, ये होना चाहिए पैकेज। आत्म साक्षात्कार कैसे करें, ये किसने पूछा है? एकता गुप्ता। बहुत ये गहन विषय है, आत्म साक्षात्कार कैसे करें। आत्म साक्षात्कार के लिए आपने जो इमोशंस हैं, पहले इमोशन जानते हैं आप, हमारे जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इमोशंस पे काम, हमें उस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। आपने शायद सुना होगा फाइट और फ्लाइट थ्योरी। अचानक सांप आता है तो क्या होगा, या तो आप लड़ोगे या भागोगे, ये तो होगा फाइट और फ्लाइट, है ना। तो आत्म साक्षात्कार करना है तो पहले अपने जीवन के बारे में सोचिए, लड़ना है कि भागना। मतलब संसार में रह के आत्म साक्षात्कार करना है कि उससे निकल के करना है, दो अलग अलग चीजें। आपको हिमालय भेज दिया, जहां ना आपके फ्रेंड हैं, जहां ना आपको टेस्टी खाना है, ना आंखों को अच्छा लगने वाली कोई भी रमणीय या दार्शनिक चीजें वहां मिलने वाली हैं, ना नेटर मिलने वाला है। आपको वहां दिया जाता है 1 महीने। 1 महीने के लिए ऐसे ही किसी लड़के को संसार में के अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है, घर में रख दिया जाता है, कि उसे कुछ नहीं दिया जाता। तो मुझे बताइए, इजी किसके लिए होगा इन सबसे दूर जाना? जो दूर चला गया हिमालय पे उसके लिए, या जो घर में है? भाई जो हिमालय में है उसको दिख ही नहीं रहा, तो उसके लिए इजी है ना। दिक्कत कहाँ है कि मेरे सामने रसगुल्ला पड़ा है और मैं ना खाऊं, है ना। रसगुल्ला है ही नहीं तो मैं 1 दिन सोचूंगा, 2 दिन सोचूंगा, हिमालय पे 3 दिन सोचूंगा, चौथे दिन क्यों सोचूंगा, है ना। निकल ही जाएगा दिमाग से रसगुल्ला ही निकल जाएगा। तो आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे पहले अपने अंदर से वो सारे विचार निकालने पड़ेंगे जो आपको बार बार नॉक करते हैं। आवरण है ना, अविद्या लगी हुई है। हम अभी क्या प्रकृति को रियल समझ रहे हैं, जो क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस, हर चेतना सब कुछ है, वो समझना पड़ेगा। देखिए,
नाम रूप आकार कैन बी ए चेंज, बस ओरिजिनल स्वरूपा कैन नॉट बी चेंज। देखिए समुद्र में, समुद्र जो देखा होगा आप लोगों ने, उसमें से जब पानी ऊपर को उठता है, जैसे वो समुद्र से अलग होता है उसका नाम चेंज हो जाता है, वो लहर बन जाता है। इसका एक सूत्र है, प्राणस्य प्राणायाम प्राणमेवावशिष्यते, मींस एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द सेम सोर्स, रिमेन इन सेम सोर्स एंड डिसॉल्व इन सेम सोर्स। बता रहा समुद्र से पानी अलग हुआ तो उसका नाम रूप आकार तीनों चेंज हो गए, लहर बन गया, वो समुद्र नहीं रहा, और कुछ देर वहीं रहा और डिसॉल्व, उसी में डिसॉल्व हो गया। आप गर्ल्स लोग कान में पहनते हैं कुंडल, उसको क्या बोलते हैं? ईयर पिन, है ना, ईयर पिन। नाक में पहनते हैं नोज पिन, गले में पहनते हैं नेकलेस गोल्ड का, है ना, गोल्ड गोल्ड यहाँ पहना तो ईयर पिन हो गया, गोल्ड यहाँ पहना तो नोज पिन हो गया, गोल्ड गले में लगाया तो नेकलेस हो गया। अब मैंने तीनों को लेके मिला दिया, गोला बना दिया बॉल जैसा, ठीक है। अब अगर चाट लो इसमें नेकलेस, अपना नोज पिन और ईयर पिन, चाट पाओगे? नहीं चाट पाओगे। जैसे उसको अलग किया, उसका नाम, रूप, आकार तीनों चेंज हो गए। ओरिजिनल स्वरूप तो गोल्ड ही था ना। सिमिलरली वी ऑल आर केम फ्रॉम सेम सोर्स, हम सब एक सेम सोर्स से आए हैं, लेकिन जैसे ही आए हमारा रंग, नाम अलग, रूप अलग, आकार अलग, और जैसे ही हम मरेंगे हम फिर सेम सोर्स में चले जाएंगे। तो आत्म जब नाम रूप आकार हुआ है तो ये इसको उल्टा लेके जाना है। इसने बोला था प्रसव से प्रति प्रसव की ओर हमें उल्टा जाना है, और जब उल्टा जाएंगे तो वो सब चीजें हमारे से दूर होती चली जाएंगी। अज्ञानता, अविद्या है जो समझ नहीं पा रहे, जब उसका ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें आत्म साक्षात्कार का भी ज्ञान हो जाएगा। अभी नहीं समझ पाओगे इस चीज को, क्यों? क्योंकि आवरण चढ़ा हुआ है, अविद्या का आवरण चढ़ा हुआ है। प्याज होती है ना, प्याज के छिलके निकालते जा रहे, निकालते जा, एंड में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, वही आत्म साक्षात्कार। ज्ञान का आवरण निकालना पड़ेगा, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, ठीक है। Sir, thank you for that explanation, but due to the time constraint, we have to limit our questions. But this is not the end. जिनके भी questions हैं, जो मन में doubts हैं, बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो आप उनको हमें chat box पे या जो भी आपको feedback form दिया है उसमें आप mention कर सकते हैं। और हम request भी करेंगे, we request sir also to be part of our final webinar जो कि 11th जून को होने वाला है। तो उसमें भी हम लोगों का समय मिलता है तो हम लोग वहाँ पर भी चीज़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक योगा एंड एंशिएंट साइंस ऑफ हीलिंग। और हमने बहुत कुछ जाना, समझा, और विद्यार्थियों ने भी इसमें बहुत अच्छे से प्रतिभाग किया। नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस webinar, and in this webinar I would like to invite Dr. Subhani Bara ma'am, Dean Nursing and Public Health, for the vote of thanks. Respected Dean ma'am. Ma'am, yes, ma'am, we need to unmute ma'am. Can you unmute yourself? Hello. Yes, ma'am, you are audible now. Okay. Good morning, everybody. Good morning. Honorable VC Sir, Vice Chancellor, Professor Dr. Gopal Pathak, Sarla Birla University, Registered Professor Dr. V.K. Singh, Sarla Birla University, Dr. Ghanshyam Singh Thakur, Assistant Professor, Gariwal University, Srinagar, Uttarakhand. Speaker of the today's program, Mr. Ashutosh Dwivedi, Coordinator from Admin, Mr. Nilanchal, Professor Garima, Madam,
Namrata madam, all the students, and those who have joined this program. I'm sure we all have gained knowledge on ancient trends and recent advancement, that is Yatra. We have started 7 years back celebrating as an International Yoga Day on 21st June. As we heard through many speakers that yoga connects us with God. Through yoga, we have healthy life. Our speaker, Dr. Ghanshyam Singh Thakur, has explained very well how yoga helps us to be healthy. I'm very happy our university, Sarla Birla University, is committed to provide help to the community, society through yoga. I thank each and every one of you for giving your precious time to be here. And I'm sure you have come up one step ahead to be with God by hearing to our special guest. Because there is nothing in this world if you'll be apart or far away from God. ईश्वर परमेश्वर के करीब उसके साथ जीवन बिताना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए सर आपको बहुत धन्यवाद and everyone who were present here. I thank you all. Thank you all once again. Thank you so much, ma'am. सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? हाँ, थैंक यू वेरी मच। और मैं डीन मैम, सुभानी जी मैम और हेड नीलांचल जी और अभी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं बधाई देता हूँ कि मुझे भी बच्चों के बीच थोड़ा सा अपनी बात रखने का मौका मिला। और मैं फिर से बोलूंगा कि जिस तो आपने टीम रिसोर्स पर्सन जो चुने उनके साथ अपने आप को ब्राउचर में देखना है। मुझे अपने आप को गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ मैं खुद ही कि मैं सुबोध जी, बालकृष्णा जी और चिन्मयानंद जी के साथ है। ये मेरे लिए भी गौरव की बात है। और आप सबको बेस्ट विशेष आपके पूरे वेबिनार के लिए। और कभी भी मैं स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा एज ए, क्योंकि हम सब योगा फैमिली को बिलोंग करते हैं और योग संबंधी जिससे संबंधित कभी भी कोई आपको डाउट हो तो आई एम ऑलवेज विथ यू। और आप गरिमा मैम से मेरा नंबर ले सकते हैं क्योंकि मेरी रिसर्च स्कॉलर रही है, उसको मेरा नंबर है। अब आपसे भी परिचय हो चुका है सबसे, तो कभी कोई डाउट हो तो आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और once again, thank you very much to invite me here. Thank you so much for your kind words, sir. और डेफिनेटली ये वेबिनार है और हम लोग आपको सेमिनार में और इस तरह के फिजिकल मोड पे भी देखना जरूर चाहेंगे। और आपके ज्ञानवर्धक जो भी ज्ञान ले सकते हैं विद्यार्थी और हम भी आपसे कुछ सीख सकें, इसके लिए हम आगे भविष्य में भी कोशिश करेंगे। और अभी जो 11 तारीख को जो वेबिनार होगा उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि आपका भी उसमें पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि वो लास्ट हमारा इवेंट रहेगा। तो आई होप कि आप और नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट कि इसमें जो पूरा ये आज का जो वेबिनार है और आगे जो वेबिनार सीरीज है उसमें लिव होलिस्टिक वेलनेस का भी एक योगदान रहा है, जो कि हम लोग को ये प्लेटफॉर्म प्रेजेंट कर रहे हैं और उनका भी धन्यवाद। और आई लाइक टू इनवाइट विशाखा फॉर दिस शांति पार्ट। विशाखा, ओवर टू यू। Get ready, all of you get ready for Santi Path. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, sir. Thank you, Vishakha. और सभी से निवेदन, I request all to join our next webinar on 20th। और सभी से निवेदन कि आप नेक्स्ट वेबिनार जब है तो उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें, 20 तारीख को है।
और जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिला है उसमें आप ज्वाइन रहें, और इस वेबिनार के लिए जो बना हुआ है। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग। हैव अ नाइस डे।